Yo, guys, what's up? Welcome to another episode of Happily Whatever After Tips and Tales with for relationships. for relationships. हाँ, हम हमेशा भूल जाते हैं. So हम हमेशा Season सीजन two. 2, यस. तो ये थोड़ी मस्ती मजाक तो चलती रहेगी हमारे सीजन 2 में. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सीजन बहुत ही स्पेशल होने वाला है. और जैसा हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था हमारे सीजन 2 के पहले एपिसोड में, दैट वी विल हैव लॉट ऑफ गेस्ट एंड वी विल आल्सो शेयर लॉट ऑफ रियल स्टोरीज. एंड विद दैट स्टोरीज वी आर गोइंग टू शेयर सम टिप्स अबाउट हाउ यू कैन एनहांस योर लाइफ. एंड अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, जो हमने अपने सीजन 1 में बता दिया था कि कितने प्रॉब्लम्स आए थे. हर टाइप के प्रॉब्लम्स आए थे, तो उनके सोल्यूशन भी मिले थे हमें from real people. So one more such very real person is here, someone very dear to me, someone who has been with me for a very long time. Yes. She is my longest standing friend in all the craziness that we have seen in our life and relationships. And similarly, I have been through her journey and her issues and her life and relationships. So I wanted to welcome a mini celebrity, if I would like to say that, Miss Parul Sukhwani. And I call her mini celebrity because she's like, the accolades are endless. She has been a very should I say veteran, Parul? Veteran Sorry? RJ of Radio Mirchi. Better. Oh my God. At least you're calling me a mini celebrity. People have called me a local celebrity also. Oh God. Mini is better. And she has been on MasterChef season 1, right? Yes. And like, amazing things she's achieved in life. And today we are going to talk about a different aspect of her life, apart from all the celebrity things that she's done, apart from all the achievements she's made. There is हम usually ऐसे लोगों की सारी ग्लैमरस चीजें देखते हैं, हम उनकी रियल लाइफ का पार्ट भूल जाते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड दे हैव ऑल्सो बीन थ्रू a lot of problems in their life. Yes. And in season 1, if you guys remember, you guys had shown us a lot of love for the episode where we told you about what happens when a relationship comes to an end. Yes. So this time around, that was a male's perspective. This time around, we are bringing you Parul's perspective on how what happens to the person when the relationship does not work out. But before we start this episode, I think we would like to thank Parul for being here with us and to all our listeners. So, Parul, over to you. As we always say, our guests are more important. The introduction, you want to say something for the start of the episode? Please. Thank you so much, guys. I'm so excited to be on Happily Whatever After. I mean, it feels like every moment of my life has led to this. Oh, Thoda dark ho gaya, I know, but when I'm nervous, my dark sense of humor gets activated. No, but seriously, I think you guys are doing a great job, and congratulations for season 2. मैंने पूरा first season wait किया कि अब मुझे invite करेंगे, but glad to know that I'm season 2 material. So सीजन 1 में हमारे ही रायते खत्म नहीं हो रहे थे यार, तो हम लोग we were like कि और किसका बोल के और रायते Exactly, फैलाए. No, but really glad to be here. A little nervous because I think it is the first time that I am going to talk about this on a setting like this, which is little, not little, a lot It's out public. there. Yeah. Yeah. And we are So- very grateful that you've chosen to be candid with us and share this part of your life. So really thankful for that. Thank you so much for sharing all of these things that we are about to ask you. Um, शुरू करें? so, where do you want to begin? I'm all yours. Yeah. So basically, I just wanted to ask you to give us a background of what happened in your marriage or relationship before that. I would leave it up to you to share how much you want to, and what made you decide to end it or lead to a divorce. Before we talk about that, can I talk a little bit about who I was before Absolutely. I Yeah, got yeah. We married? want to understand the background Yeah, that you totally. came from, Yeah. and then you can lead to the story. Yeah, absolutely. Yeah, because that's a very big part of my journey and where I am today. क्योंकि जैसे होता है ना, before Christ and after death, so there is a clear demarcation in my life. My life is divided into these two phases.
तो बहुत जरूरी है ये जानना कि वेयर आई वॉज कमिंग फ्रॉम, मेरा माइंडसेट, मेरी थॉट प्रोसेस एज अ पर्सन, एज अ वुमन, coming from a middle class family, born in the late 80s, you know how it is, right? तो मेरी फैमिली भी बहुत कन्वेंशनल थी हमेशा से. My mother was, more I think conventional than my father, and very very challenging, I think, parenting, or I would say childhood I've had, because she had a set goal. She was very very particular about how she wanted my life to be, based on her own experiences and all. तो मुझे ना बचपन से, actually I was not a daughter, I was like a बहू in training. तो मुझे बचपन से ना एक बूट कैंप ट्रेनिंग मिली हुई है कि हर Yeah, चीज I जो मैं feel कर रही you. हूँ, मेरी जिंदगी का हर एक एक्शन, हर एक चॉइस, हर एक डिसीजन, मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, वो एक ही चीज से डिसाइड होता था कि हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माय फ्यूचर मैरिज, करेक्ट। राइट? तो दैट इज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट आई केम फ्रॉम. एंड नेचुरली मेरे अंदर भी ये एक चीज बैठ गई कि मेरी जिंदगी का एक ही गोल है कि मुझे शादी करनी है. तो मुझे याद है कि मेरी शादी के जो वीडियोस थे, उनमें भी मेरे सारे फ्रेंड्स ने यही बोला है कि अरे ये तो जब भी मेट की गीत है, दैट कैरेक्टर वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हर, बिकॉज एवर सिंस शी वाज बोर्न शी जस्ट वांटेड टू गेट मैरिड. एंड Shoki, you would also remember in college, I think I was the least ambitious person, right? Yeah, लोगों yeah. को लगता होगा कि ये इसका एक पैर बाहर निकलेगा कॉलेज से, वो मंडप में जाएगा, मतलब एक पैर स्टिल I इन know. कॉलेज और दूसरा मंडप में है. तो Yeah. दैट इज हाउ focused I was on getting married. So I never focused on anything else. Yes, I was talented, I always had, I was very different. I never fit in. And I used to kind of always curse myself कि why can't you be like other women? Why can't you be like other girls? Why are you, ये अंदर जो different thoughts भी आ रहे हैं ना, ये भी क्यों आ रहे हैं? So I used to Hmm. suppress them. करेक्ट। क्योंकि मुझे था कि यार मुझे वो लड़की बनना है, वो टिपिकल जो एक अच्छी बहू हो, अच्छी बीवी हो. मैं सुबह उठूंगी, अपने पति को खाना बना के दूंगी, मेरे बच्चों को स्कूल भेजूंगी, फिर जब वो आएंगे तो उनको होमवर्क कराना है, पति को शाम को उसके साथ बैठ के कुछ खाएंगे, बातें करेंगे. ये मेरी लाइफ का एम था. Hmm. बट समहाउ द आयरनी वाज कि हो नहीं रहा था ये मेरे साथ. ऑल माय फ्रेंड्स वर गेटिंग मैरिड एंड ऑल, और मुझे और दूसरी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिल रही थी. करियर अच्छा जा रहा था, मास्टर शेफ हैपेंड, रेडियो मिर्ची हैपेंड, but that was all a time pass for me. I never took anything seriously because मुझे लगा कि ये तो while I'm waiting for the train on the platform, this is just a time pass that I'm doing. मेरी destination तो कुछ और ही है. So, and I it is my biggest regret, because I feel like I should have focused on myself. I got so much time, and I think यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हुई. वो ये कि हमारी सोसाइटी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपको समय नहीं दिया जाता कुछ भी सोचने के लिए, Hmm. ये पूछने के लिए कि आप कौन हो, आप लाइफ में क्या चाहते हो. दैट्स व्हाई मिड लाइफ क्राइसिस हैपेंस इन मिड लाइफ, क्योंकि तब आपको पहली बार शायद समय मिलता है कि आप सोचते हो अच्छा सब हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ. मुझे वो समय पहले मिल गया क्योंकि शादी हो नहीं रही थी, रिलेशनशिप्स वर्कआउट कर नहीं रहे थे, और मुझे अरेंज मैरिज तो नहीं करनी थी क्योंकि इतनी जो मैं फैंटेसी लैंड में जी रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी फैंटेसी I know. जो है वो यही है कि प्यार हो, टोटल फिल्मी थिंग, राइट? वो हो नहीं रहा था. तो अब करियर भी सेट है, सब कुछ है, तो टाइम मिल गया सोचने का कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन वो ट्रेनिंग ना यहाँ पर खराब हो गई थोड़ी सी. तो फाइनली व्हेन आई डिड गेट मैरिड, I was an individual who had little bit of my own thoughts, and I Hmm. was like, okay, this is wrong and this is right. वो Hmm. समझ जो समाज नहीं चाहता है कि किसी लड़की में आए, वो मुझ में आ चुकी थी थोड़ी बहुत. आई थिंक दैट इज व्हाट वेंट रॉन्ग, नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक, so now coming to my marriage and my relationship, it was a love marriage, same caste and everything. Parents had kind of given up hope because I was 29 and nowhere near to getting married. तो जब उन्हें मैंने बताया और उन्हें पता चला कि सेम कास्ट का लड़का है, उन्हें लगता था कि पता नहीं ये किसी भी कास्ट से जिसको भी लेकर आएगी, we'll have to accept, right? So they were like very happy कि चलो सेम कास्ट का है and she's अपनी पसंद से भी करना चाह रही है. Everyone was happy, सब कुछ हुआ. My relationship was like so beautiful. It was like a fairy tale Bollywood romantic relationship. Serendipity started from that, and it was all really good. But just before marriage, issues started happening little bit, and मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी शोकी कि what went wrong, किसने क्या गलत किया, Hmm. क्योंकि मेरा फोकस
ज्यादा इस पर है कि what are the lessons and Yeah. how, whatever happened, good and bad, how it shaped me, Hmm. and what is the giveaway, that others can take from Hmm. that. Hmm. Yeah. I think हम 2-3 साल पहले इस बारे में बात कर रहे होते तो Hmm. शायद मैं इतनी महान नहीं बनती जितनी अभी बनना चाह रही हूँ. वो भी I don't know, let's see, maybe I'll get triggered and something will come out. You never know. But as of now, I feel that I have worked a lot on my healing. तो उन चीजों के बारे में बात करना मुझे उतना अच्छा लगेगा भी नहीं. But Hmm. as when it will be needed in the podcast, we'll Yeah. talk about it definitely. Yeah. Yeah. One Yeah. thing I want to definitely add here that um, my marriage was a very short marriage. I Hmm. mean, we stayed together only for 5 months, and then I came back to my parents' place. Hmm. After that, I was not ready to give up on the relationship. He was the one who wanted to end it. I still wanted to make it work. So, for the next 3 years or so, I just kept trying to make it all work. And finally, after that, I realized that I have done everything. Now, the only thing that is, left to do is part ways officially. So then we got divorced in November 2021. So it's been a long time now. But but given the fact that it was such a short marriage, uh, like I cannot ignore the irony that you still worked on it for 3 years, Yeah. and like that also has to do with the upbringing, I guess, the mindset that you were into, that marriage is everything. Yeah. Yes, I would say it majorly it happened for two reasons. One is that I really, really, really love my ex-husband. And like I said, it was a fairy tale relationship, the way we met and everything. It was like the whole universe conspired for us to be together. So I was not ready to give up on that. Hmm. It is very important for everyone to understand, and I learned it the hard way, that there's a lot of difference between a relationship and a marriage. They are two Yeah. completely different things, right? And you guys have been talking about it so much. Yeah. So I was not ready to give up on the relationship. वो एक part था, right? And the love and the connection that we had. And the other part was, of course, the taboo, the whole trauma of being a separated or a divorced woman. I was in denial completely. You will not believe, Shoki. So I was working with a radio channel that time as a voiceover artist. And except for two of my friends, like my close friends in the office, no one knew about what was happening in my life. For such a long time, I hid it very consciously. I would, इट्स वेरी फनी व्हेन आई लुक बैक नाउ, लेकिन मैं इस तरह की बातें किया करती थी जिससे उनको लगे ना कि मैं सेपरेटेड हूँ, कि मैं कभी ना कभी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बात कर दूंगी. और मैंने एक ऐसी पिक्चर पेंट कर रखी थी दैट वो तो इंडिया के बाहर रहता है, तो इसलिए मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी लाइफ में. कैन यू इमेजिन? मतलब आई Yeah. वाज Yeah. I was not lying, but I was manipulating my life a lot. मतलब I was lying also, but वो भी मुझे करना पड़ रहा था क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी. और मैं डिनायल में भी थी, और मुझे ये भी लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं क्यों ये वाली बातें करूँ ना, जब अल्टीमेटली सब ठीक हो ही जाने वाला है. तो लेट्स जस्ट गॉसिप करने का मौका नहीं देते लोगों को. Hmm. Hmm. और मेरे ख्याल से द डी वर्ड, और it was a lot for me. मैं Yeah. I think, like I said, 3 years, right? So 1.5 years, 2 years down the line, मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गया था that this marriage is not right for me. It's not gonna work. And even if I make it work somehow, I will not be happy. But still, I was not ready to give up, because how can I be a divorced woman? How can my marriage not work? How can Parul's marriage not work? Parul जिसकी जिंदगी का एक ही एम था. तो मुझे याद है मैं अपने एक्स हस्बैंड को ये बोलती थी हमेशा कि it's not just about this marriage ending. If Hmm. this marriage ends, the entire foundation of my life is going to change. And that is the biggest change which I am not ready to, go with. क्योंकि for me, marriage, like आप imagine करो जिस इंसान को सिर्फ एक ही चीज के लिए बनाया गया हो Hmm. और उसके साथ वही चीज ना हो. So what Yeah. is the purpose of my life anymore? I don't know what my life is without either waiting to get married, dreaming about marriage, planning about marriage, or Yeah. being in the marriage. So Yeah. yeah, I think I was going through a
very, very big turmoil that time. So, uh, Parul, you have very nicely explained the part A and part B, which is, before the D word and after the D word. We can call it marriage and after marriage. But then, you have also told about the mindset of how you were being raised, correct? And with the woman getting raised in such a manner in Indian society, there is a lot of judgment. There is a lot of, you know, treatment that goes on from the family, outside the family, around friend circle. And as you rightly said, that you did not open up with your friends. What was, that feeling at that point of time? Were there any discussions between friends? Were there any hard talks that you would want to highlight, that how a female possibly goes through? Because male's perspective, I mean, why I'm asking this question is, I have seen my mother, father getting divorced, right? And I know how society treats a woman, and how a male is being treated in a society. It is not easy for a female to, have the journey after getting the D or the divorce, right? I mean, I'll be open right now in the conversation. I don't want to stop with the D word, but then I have seen my mother struggle. I have seen her going through a lot of, uh, taunts, or those smaller Judgments. judgments that you call right now. How did you deal with that? How does it happen with the female? Because obviously, my mother also was, not well educated as you are, and obviously there were different It's aspects a of, like, different time it was a altogether. different time altogether. But right now we want to actually understand, how did you deal with it? Were there any sort of stories that you want to highlight? So, like Shoki said, वो time अलग था, थोड़ा सा generation. Although I think when it comes to women, the changes have been very gradual. तो Yeah. वो change इतना तो नहीं आया है. Friends and I think cousins जो थोड़े like-minded या जो same age के लोग होते हैं, उनके साथ तो मुझे नहीं लगता उतना issue था. Correct. सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेरे साथ में एक it's very weird, but I think the most difficult person that I had to deal with during all of this was my mother, because like I said, it was not just my dream, it was not just my goal. वो मेरी जिंदगी उन्होंने स्क्रिप्ट करके रखी थी. She Mhm. was the director producer and nothing was going according to the script. So Yeah. you can imagine कि सेट का माहौल क्या होगा. तो but I was very, very lucky in terms of relatives. मैं आज भी कई बार सोचती हूँ ना, because I come from a Sindhi family and we are very conservative people. तो Yeah. एक जिसको कहते हैं ना पंचायत बहुत Mhm. होती है हमारे Yeah, यहाँ yeah, पर, yeah. if I put it that way. तो मुझे लगा था कि it's going to be very difficult for me when it comes to facing relatives and all of that. But strangely and fortunately, I did not have to face a lot of issue there. They were kind enough and sweet enough to at least not come and talk to me about it. Hmm. और जहां तक मैं जानती हूँ, पीठ पीछे भी कोई इस तरह से बात नहीं कर रहा था, बुराई नहीं कर रहा था. यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन. बहुत सारी बातें होती हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ. सबको पता भी था एक्चुअली कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है. कई बार तो मुझे वियर्ड लगने लग जाता था कि यार प्लीज कम एंड टॉक टू मी अबाउट इट, बिकॉज आई नो समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर हेड एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे होंगे ना, कुछ तो बोल रहे होंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी चीज हो गई कुछ बात ना करे, तो मुझसे आके करो ना, बिकॉज आई एम सो मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इज नो वन टॉकिंग टू मी. बट आई थिंक दे रियली वांटेड to not bother me because they knew that I was already going through a lot. So that way I was very lucky. But Karan, like you said कि एक लड़की के लिए ही अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. Correct. मुझे लगता है कि उस टाइम पर मुझे पता चला कि मैं असल में कितनी मॉडर्न और इंडिपेंडेंट, जो कि मुझे लगता था कि मैं हूँ, मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ, Oh. सीरियसली. क्योंकि आप किसी से भी पूछोगे पारुल के बारे में, दिल से, अरे शी इज वेरी आउटगोइंग, वो तो बहुत स्ट्रांग लड़की है, बहुत बहुत ही मॉडर्न है, बहुत इंडिपेंडेंट है, नथिंग कैन ब्रेक हर. लेकिन मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि मेरे जैसी लड़की के लिए भी जब इतना डिफिकल्ट है एक ऐसी शादी को छोड़ना जो क्लियरली वर्क नहीं कर रही है, Mhm. तो बाकी की जो औरतें होती हैं, लाइक योर मदर करण, हु वाज आल्सो नॉट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली और नॉट दैट एजुकेटेड, हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी फॉर पीपल लाइक दैट. क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना, यार ये क्यों अभी तक इस शादी में है,
करेक्ट। इसका हस्बैंड तो इतना खराब है, ये क्यों अब छोड़ नहीं देती है। हम जज करने में वी आर वेरी क्विक। बट उस वक्त मुझे समझ आया, अगर मेरे जैसी लड़की नहीं छोड़ पा रही है और इतनी सारी चीजें हैं जो उसको छोड़ने नहीं दे रही हैं, तो आई कैनॉट इवन इमेजिन व्हाट इट इज फॉर अदर वुमेन टू गो थ्रू दिस, right? But coming back to the point of relatives, I would like to share one incident. So Shoki, you are also an elder daughter. I think you'll be able to Yeah, relate yeah. with this. हम लोग ना बचपन से हमें बहुत स्ट्रांग रहने की और हमेशा सब कुछ ठीक करने की एक आदत होती है, Yeah. क्योंकि वो हमारे ऊपर रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो मुझे याद है कि 30th of June आई गॉट सेपरेटेड, मतलब आई केम बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस, एंड जुलाई एंड या अगस्त में राखी थी। तो मेरे घर पे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले थे, और आप सोचो कि 1 महीने पहले मेरा सेपरेशन हुआ है, मैं किस माइंडसेट में हूँ। लेकिन मैं सारा टाइम ये सोच रही थी कि जो लोग मेरे घर पर आएंगे, उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि बेचारी इसके साथ देखो कैसा हो गया, या उन्हें ये तो नहीं लगेगा कि यार वी कांट बी हैप्पी ऑन अ फेस्टिवल बिकॉज शी इज सैड। Hmm. करेक्ट। तो ये चल रहा है मेरे दिमाग में, एंड यू नो व्हाट आई डिड, आई ओवरडिड एवरीथिंग। I got dressed so amazingly. I put on really nice makeup, really nice jewelry and everything, and I was the happiest person in the family on that day. जबकि अंदर से मुझे ही पता है कि मेरी क्या हालत थी, राइट? Hmm. बाद में मैंने सुना कि लोगों का ऐसा कहना है, लोग ऐसा कहते हैं कि यार इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यू नो, ये Of तो एकदम course. ऑफ ठीक है। कोर्स। Yeah. हमें तो लगा यस। था डेवस्टेटेड होगी, तो मुझे बुरा भी लगा कि यार लोग कैसे होते हैं, बट फिर मुझे लगा इट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज दैट्स द फेस आई एम पुटिंग ऑन, एंड नो वन हैज आस्क्ड मी टू डू दैट, माइंड यू। करेक्ट। ये अपने अंदर से कई बार क्या है, हम औरतों की ये प्रॉब्लम होती है कि बिफोर द वर्ल्ड जजेस अस, हम खुद ही अपने आप को जज करते I was just going to say that ki whatever you are telling me right now, I feel like the question ka answer is here that your own conditioning, your own social conditioning हैं। makes you judge yourself so hard कि किसी और के judgment की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। या या हम खुद ही एग्जैक्टली। खुद अपने like I was also I keep discussing this on the podcast also that you and I when we were girls in college we used to read those romance novels and we used to watch those Bollywood films and have these poetries and stuff like that and we used to totally jam on it, right? So हम बट एट द सेम टाइम हमारी माओ ने हमारी ऐसी कंडीशनिंग की थी कि बेटा कुछ भी कर लो, कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुमको सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष लड़की बनना जरूरी है। या तुमको एग्जैक्टली। मतलब जरूरत पड़े तो तुम सर पे पल्लू रख के लोगों के पैर भी छुओगी, खाना भी बनाओगी और ऑफिस भी जाओगी। ओके, करेक्ट। राइट। तो इट्स एन एक्स्ट्रा थिंग। तो हमारे खुद के जजमेंट ही इतने बढ़ चुके होते हैं, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है फ्रॉम अ मैरिज or from ourselves in a marriage as a wife. It just gets to you करेक्ट। like you were only thinking about other people while trying to put up a brave face, but यस, other लाइक यू people डोंट were, अलाउ योरसेल्फ टू इवन बी वीक। आई या yeah, मीन वो या तो एक चीज है, बट मैं you अपने आप can't को break ये, down, सॉरी। you can't break down in front of people. एग्जैक्टली। और पता है मैंने क्योंकि हम कहीं जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यार कोई बहुत दुखी है, मेरी हंसने की इच्छा हो रही है लेकिन मैं हंस नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसको बुरा लगेगा। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, इसीलिए मैं ही स्ट्रांग बनती हूँ, तो उन लोगों को भी खुश होने के लिए खुश होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो स्ट्रांग बने रहने का भी एक कीड़ा है ना, मैंने अब अपनी लाइफ में, और मैं आई यूज्ड टू बी वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट ओ आई एम सच अ स्ट्रांग वुमन, यू नो। नाउ आई हैव अलाउड माई सेल्फ टू बी वीक because it's very toxic, it's very it's painful, it's really exhausting to be strong all the time. So या I'm now I have really let myself go, और मैं दूसरों की कंफर्ट के बारे में ऐसा नहीं कि नहीं सोचती हूँ, बट अगर मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसमें, तो आई जस्ट स्टेप आउट और टेक माई टाइम और वॉट एवर। hmm. I think what you rightly described is the main crux is that ki, as we discussed about females, right? You have been always told, as Shoki also told that कि बचपन से आपको इस तरीके से पला बढ़ाया जाता है कि आपको आपकी अपनी खुद की ड्रीम्स को आप मार रहे हो, and then when the dreams are being not fulfilled at certain extent, पहले तो आप मार रहे हो कि मुझे ये नहीं करना है बट मैं करूंगी because the society has created, and then on top of it
you are still saying that ki because the society has told me I will be strong. It is actually very wrong, and I completely feel what you are exactly saying. And right now I have a feeling that ki how difficult it is for a woman to go through this phase in the life. I have seen, but right now I can exactly feel those emotions and those turmoils that you guys go through, because पहली बात आपको सोसाइटी नहीं खड़ा करेगी, दूसरी बात आपको रिलेटिव्स जज करेंगे, एंड देन द लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू आर, इट्स हाउ हार्ड इज इट दैट कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे रिलेटिव्स आएंगे और मैं उनको अपना गम नहीं बता सकती. व्हाट sad, but yes, I think I'm really proud that you have taken this step to let Be go, vulnerable. be vulnerable. I think that's commendable. या सो करण, ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जब मैं सेपरेट हुई थी, लाइक आई सेड, आई हैड नॉट गिवन अप ऑन द मैरिज, राइट? तो तभी भी मेरा फोकस ये था कि आई हैव टू मेक द मैरिज वर्क. Yeah. बट मेरा जो अप्रोच एक्सटर्नल नहीं था, इट वाज वेरी इंटरनल. मुझे ये समझ में आ गया था कि आई हैव टू heal myself because I have attracted this in my life. मैं थोड़ी सी spiritual type की भी हूँ, तो मुझे लगा कि यार whatever is in me that has attracted this situation in my life, I need to really work on that. तो मुझे याद है कि जून 30th से लेकर अगले 8 महीने और सो मैंने और कुछ भी नहीं किया है. मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज, meditations, retreats and workshops, what not. I just went completely within. Yeah. जबकि नॉर्मल लोग जो हैं वो इस वक्त बाहर जाते हैं और वो डिस्ट्रैक्शन या एस्केप ढूंढते हैं. मुझे अभी भी याद है, आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ टू वॉच अ सिंगल शो और मूवी. आई वॉज लाइक, what, it's very easy to get into that, you just get stuck in that loop, क्योंकि वो बहुत अच्छा एस्केप है और वो Yeah. एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगा. मुझे याद है फेब 2018 आई गॉट सेपरेटेड, जून, राइट? तो नेक्स्ट मैंने जो शो देखा था, इट वाज 2019 February और मार्च. इट वाज मेड इन हेवन again, Okay. an irony. But I remember very clearly because after such a long time I was watching something. So that work, even though it did not help me in saving my marriage because it was clearly unsavable, if that is a word, but उसने मुझे जरूर सेव किया. तो आज अगर मैं ये भी बोल पा रही हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट वर्क दैट आई डिड. Yeah, okay. So, like I'm just wondering like this, what was, if this is totally up to you, Parul, if you want to share this or not. But I just wanted to understand that if you're saying that you were trying to work on the marriage for these 3 years, what was the other person doing or helping or saying no? Like, what went on in those 3 years when you try to save a relationship? What goes on into it when one person is willing and the other person is also probably willing? I don't know that. But what goes on in the relationship per se when you're not living together, when you're married but you're supposed to be separated, when you want to make things work but they are clearly not working out. So what goes on in that relationship in that phase? Because I think a lot of people Yeah. ऑलवेज गेट स्टक इन दैट डिलेमा कि क्या करें हम, पहली बात तो छोड़े या ना छोड़े, और सबसे पहले सेपरेशन हो जाता है, और फिर सेपरेशन से डिवोर्स तक का जो सफर होता है उसके बीच में क्या हो रहा होता है, इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू लाइट टू ऑल आवर लिसनर्स. राइट. Like for an example, what I can relate, Shoki, correct me if I'm wrong, is that कि the process itself is so hard that पहली बात तो आपको, जैसे हमने डिस्कस किया, आपको सोसाइटी से डील करना पड़ता है. देन यू ऑल्सो हैव योर you are going to coach, you are filing, you are listening to advocates, there is a lot of stories, and all of things are there. Obviously, whatever, it will be mutual and all, but then it's a hard time for you. How do you take it? What were those times that you stretched? If you can give us that understanding. Yes. So when we got separated, obviously the families met and started talking about what's happening and why this is happening and what we should do. So his family was, like I mentioned before, he was the one who wanted to end the marriage. He had decided that he doesn't want to be with me. I was like, how? मतलब ऐसे कैसे? है ना? ऐसे कैसे तुमको हम ऐसा करने दे देंगे इतनी आसानी से?
तो उस टाइम पर भी मेरा स्टैंड वही था. माय फैमिली वाज आल्सो लाइक कि व्हाट बुलशिट इज दिस, हाउ कैन दिस हैपन. So the Yeah. families met, and then the elders of his family very smartly, later I realized that they had an agenda, but they very smartly said that, oh, now we can't do anything ना, because इतना issue आ गए हैं, वो तो रहना ही नहीं चाहता, तो एक काम करते हैं, but अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सब ठीक हो सकता है, तो एक काम करते हैं कि 6 महीने के लिए इन लोगों को अलग कर देते हैं और इनको बात ही नहीं करने देते हैं. तो अपने आप है ना, अगर होगा ना अंदर से कुछ और अपने आप इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, एक दूसरे की याद आएगी, इतना प्यार है या जो भी है, तो 6 महीने रह ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, या 6 महीने के बाद वील टॉक, ऐसा. अब उस टाइम पे क्योंकि कोई और ऑप्शन था नहीं, माई पेरेंट्स आर नॉट वेरी, मतलब दे आर नॉट वेरी गुड एट दीज थिंग्स. वो लोग No, इतने, no one is. Yeah, yeah. No one sees नो this. बट दे वर. My parents were like कि they did not understand what was happening. Yeah. Yeah. Later, one of my lawyer friends told me that, it is a clause that if for 6 months the couple has been out of touch completely, then, it becomes easy for them to ask for a divorce. But हम बहुत नाइव उसमें गए थे, हमें तो लगा था कि हम चीजें बनाने गए हैं और बन ही जाएंगी, तो मैं Correct. उसकी बात कर रही हूँ कि इतनी हम्म. दुनियादारी की मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं थी. तो हम लोग, मुझे लेकर वो लोग घर आते. ठीक है, तो अब मेरे लिए लाइक आई सेड कि वो फोकस था कि मुझे, तो मेरे लिए तो इट वाज नॉट द एंड, राइट. उनको लगा था ये लोग ठंडे पड़ जाएंगे अपने आप और खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, बट मैं अलग ही जोन में थी. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड एवरीथिंग. बीच बीच में आई ट्राई टू रीच आउट टू माई हस्बैंड एज वेल, बट उसने बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव मुझे ये नहीं दिया, बट मैं उससे डिस्करेज नहीं हुई. Finally, I think around Diwali, I messaged him to wish and everything. Then I asked him if we can meet. He was like, okay, let's meet. We met, and I tried talking things out with him. तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम मिलने लगे और हमारी बातें दोबारा होने लगी. He was not that negative. He was like, okay, but he was also not into it. He was like कि ठीक है, तुमको करना है ना वर्क, तो ठीक है, देखते हैं. You do whatever you can. He was not like, let's work on it together. Yeah. It Yeah. was तो up to वो, you to make it work. It was yes, one-sided, absolutely. probably. Yes. Yes. और यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूंगी द कॉन्टेक्स्ट कि बहुत सारे इश्यूज फैमिली की तरफ से थे. उसकी फैमिली की तरफ से जो मुझे आ रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था. मैंने एक स्टैंड लिया था कि आई कैन नॉट लिव विथ योर पेरेंट्स एनी मोर, राइट. तो वो एक बहुत बड़ा रीजन बना था हमारे सेपरेशन का. तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मी ट्राइंग टू वर्क ऑन थिंग्स मीन्स दैट मे बी आई नाउ Say that you're going to be टू okay. लिव विथ देम, Yeah. Yeah. right. So, and I was like, I will do everything but that. Hmm. Everything else, whatever you say, I'll do, but I won't do that, because I said that for a reason. I didn't just said it out of a whim or something. तो ये काफी टाइम तक चलता रहा, और उस बीच में भी बहुत सारे ऑन एंड ऑफ्स होते रहे. There were moments when things were so good that we were figuring out ways to how to coexist, and how can we have a good life for both of us and the family and everything. But something or the other, like क्या होता है ना कि जब कोई इंसान इतना कन्विंस्ड होता है ना कि उसे कोई चीज खत्म करनी है, तो हम वो कहते हैं ना कि वो एक सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है शायद. तो जैसे मैं सिर्फ एक बहाने की तलाश में होती थी कि मुझे वर्क करना है, वैसे वो एक बहाने की तलाश में होता था कि मुझे वर्क नहीं करना है इसके ऊपर. तो एनी टाइम समथिंग वुड गो स्लाइटली रॉन्ग, ही वुड लाइक, व्हाट, आई डोंट वांट दिस. सो ये ऑन एंड ऑफ ये सब कुछ होते होते इतना टाइम हो गया, और मुझे फाइनली एक बार ये जब रियलाइज हुआ कि मैं कुछ भी कर लूंगी ना, क्योंकि इट टेक्स, आई थिंक लाइक दे से, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. I also think that it takes a village to make a marriage work. Not that you need a participation from a lot of people, but the effort is Yeah. what I'm talking about. Yeah. तो Yeah. मुझे लगा कि दो लोग मिलके भी कई बार अपना 100% देने के बाद भी शादी को नहीं बचा पाते हैं. तो यहाँ Yeah. तो मैं 200% भी देने के बाद में नहीं कर पाऊंगी कुछ, क्योंकि सामने से विलिंगनेस नहीं है. एंड द लास्ट, I think, straw was when he told me that, okay, let's live together. You don't want to live with my parents? Okay, no problem. Let's live together, but I will never love you. Always remember that. Hmm. तो फिर मुझे लगा यार, ये जो नेवर उसने सोच लिया है ना, वो मैं चेंज इसके नहीं. साथ शुरुआत नहीं कर सकती. अगर वो मुझे ये बोले कि पारुल, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू, there is Yeah. still some scope. But he Correct. has just given his decision. He has said that it's never gonna happen.
एंड इट माइट स्टिल हैपन, बट मुझे वो शुरुआत वैसे नहीं करनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि आउटकम क्या होने वाला है. दैट करेक्ट. इज व्हेन इट हिट मी कि आई डोंट थिंक मैं कुछ भी ऐसा कर सकती हूँ जिससे इस इंसान का दिल यहाँ हो. और दिल Hmm. नहीं है ना, तो वो कहीं भी रहे, वो अपने घर के बाहर रहे, वो दूसरे देश में रहे, it's never gonna be with me. And like I'm saying this because what I'm about to say is exactly what you are mentioning, Karan. And went through almost the similar situation where I told Karan at some point of time that this marriage will not work if I'm living with the family. Correct. So I'm ready to leave. I Yeah. will walk away. But that was the time when Karan chose to be with me, yet resent me for the next 2.5 years that you are the person who took me away from the family. But what helped us, and I think we also didn't do it at the right time, what helped us was a third person, a therapist, telling us that now you two are the first family unit. Correct. A husband and a wife are the first family after marriage. Then the extended family becomes your parents and everybody else, the village that you're talking about. So do you guys did you guys never thought of taking therapy, or was that also a taboo topic? How did that go? So yeah, I was actually saving this answer for when you will ask me what is your biggest regret in your marriage, and I would say not going to therapy. But yeah, so definitely I considered it. In fact, his bhabhi was the one who told me that, Parul, I think that you guys should consider therapy. A lot of my friends have gone through it, and it has helped them. And I proposed that to my husband, and his answer was, which will explain, I think, the mentality of 90% of the people in our country or the world. He said, Parul, तुम बहुत समझदार हो, मैं बहुत समझदार हूँ. ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो हमें कोई और समझाएगा तो हमें समझ आ जाएगी. हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं. कोई और क्या ही बताएगा हमें कि हमें अपनी जिंदगी का और अपनी शादी का क्या करना है. और एक और चीज थी कि हम लोग अपने आप को, अब इसको आप ईगो कह लो या जो भी कह लो, हम अपने आप को समझते थे कि यार हमारे पास हमारे दोस्त आ रहे हैं हमसे हेल्प मांगने, उसके फ्रेंड्स उसके पास आते थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे पास आते थे, और हमारी बातों से उनकी लाइफ में इतना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था, और वो हमें बताते थे, यार वी स्पोक टू यू एंड इट रियली हेल्प्ड अस. तो हमें लगता था भाई हमें कोई थेरेपिस्ट कैसे बताएगा, हम तो मतलब थेरेपिस्ट हैं अपने आप में. यू नो So he did not agree for it. But my biggest regret in my marriage till date is the fact that I did not push him, or I should have just put my foot down कि अगर डिवोर्स भी चाहिए ना तुझे तो तो पहले पहले यू विल हैव therapy. टू ट्राई Yeah. थेरेपी. क्योंकि ऐसा नहीं है शोकी कि मुझे उससे लगता है कि मेरी शादी बच जाती, Hmm. ठीक है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि जो क्लैरिटी आपको मिलती है थेरेपी में जाने के बाद में, दोनों लोगों को अपने बारे में, अपनी Yeah. रिलेशनशिप Yeah. के बारे में, तो मैं अपने फ्रेंड्स को जो अभी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि इवन इफ यू हैव डिसाइडेड ना कि नहीं रहना है साथ में, तो एक लास्ट काम करके देखो. उसके बाद भी अगर तुम डिसाइड करते हो कि नहीं रहना है, तो यू विल बी डूइंग इट फॉर द राइट रीजन. कभी Hmm. जिंदगी में रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये कर लेते, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पैसा थोड़ा टाइम जाएगा ना, वो तो तुमने ऑलरेडी इतना दे दिया है, तो थोड़ा और Hmm. सही, Correct. है ना. और मुझे ऐसा लगता है कि शादी वर्क करे ना करे वो ही एक एम नहीं होता ना, क्योंकि उसके बाद लेट्स से इट्स नॉट वर्किंग, आप सेपरेट हो रहे हो, उसके बाद में आपको हीलिंग की जरूरत है, उसके बाद में आपको सेल्फ वर्क की जरूरत है. तो आप अगर उस टाइम पे थेरेपी में होगे, उससे जो आपको इंसाइट्स मिलेंगे ना, वो आपको बाद में भी हेल्प करेंगे टू मेक द मैरिज वर्क, और टू स्टार्ट अ लाइफ आफ्टर योर सेपरेशन. Hmm. Hmm. She has explained it very beautifully that कि therapy जैसे हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए थे, करेक्ट. एंड आई रिमेंबर दैट जब शोकी ने मुझे बोला था, आई वॉज ऑल्सो वेरी स्टक विद द वे आई हैव बीन born and brought up. I can completely relate that, though you are a female, but right now while talking to you, I have gone into my pre depression phase and post depression phase of my life, where I can clearly see that ki how a human being goes through so much of traumas that has been built in a child to raise with that, and you cannot think apart from the family that ki family क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, आप वो सब
के अंदर ही जीते हो, और आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आप अपने अंदर कितनी जद्दोजहद कर रहे हो वो चीज को ही ठीक करने के लिए. So that clarity will only come when you go to a therapy. I was stuck for what, 3.5, 4 years, and until and unless I started feeling the anxiety, I started having sleepless nights, I started having those issues where my brain was hyperventilating at the speed of like 500, 600. I used to run up and down 21 floors to calm myself down. And then COVID hit and we were like, okay, हम दोनों एक ही कमरे में बंद हो गए और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी थी हमको. दैट वाज द फेज. सो उसके बाद हमने वो लिया. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट वन थिंग विच एवरीवन शुड डू इज गो फॉर थेरेपी. Yeah. बट एक चीज मैं, शोकी वर यू सेइंग समथिंग, सॉरी, No, 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 no. you say. एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी. तो आई थिंक देयर इज अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड द विलिंगनेस टू वर्क ऑन योरसेल्फ दैट इज रिक्वायर्ड, प्लस कमिंग अक्रॉस द राइट थेरेपिस्ट. आई थिंक देयर आर सो मेनी थेरेपिस्ट इन द मार्केट राइट नाउ. आप एक किसी भी ऑनलाइन Yeah, प्लेटफॉर्म पे जाओ. that's something we've also realized. We have come through 4 5 people, different therapies, different therapists, and then एग्जैक्टली. we were able to finally find our particular fit Yeah. of a राइट, राइट. therapist and a kind of therapy that we wanted. तो वो एक जो कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि यार समय बहुत कम है मेरे पास में. ये बंदा ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है इसे मेरे साथ रहना नहीं है. हम थेरेपी में जाते हैं, कोई गलत थेरेपिस्ट मिल गया, क्योंकि आई एम फ्रॉम इंदौर, वी बोथ Hmm. आर फ्रॉम इंदौर. तो इंदौर में इतने अच्छे थेरेपिस्ट हमको पता नहीं था. ऑनलाइन मन नहीं था कि ये बहुत ही पर्सनल चीज है, हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते. वी वांट दैट प्रेजेंस, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि यार एक गलत थेरेपिस्ट मिल गया ना अगर, तो अगर वो जो थोड़ी बहुत बची खुची भी एक चीज है ना, ऐसा ना हो वो कि भी वो खत्म गलत हो. हाँ. डायरेक्शन मिल जाए, गलत गाइडेंस मिल जाए और बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो जाए. तो Hmm. ये भी लगा कि ठीक है, लेट्स नॉट पुश हिम, Hmm. मे बी इट वोंट बी वर्थ इट. तो मैं क्यों इतना जबरदस्ती इसको पुश करूं, ऐसा. Hmm. हम्म. नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोर, लाइक हमने अभी आपके बारे में बात कर ली, आपके हस्बैंड के बारे में बात कर ली, सॉरी योर एक्स हस्बैंड. देन कम्स द इन लॉज एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, हाउ दे डेल. नाउ आपने थोड़ा बहुत एक जिस्ट में बताया कि दैट देयर वाज सॉर्ट ऑफ माइंड गेम एंड अ गेम प्ले बाय देम, दैट कि 6 महीने अलग हो जाओगे. Were there anything, blame game that was happening that you feel that females also go through and you were a part of that blame game happening to you in your process of 3 years, 3.5 years? कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई. वॉज देयर एनी ब्लेम गेम के बाद? हाँ, मतलब आप जब ये डाइवोर्स में जा रहे थे तो 3 साल आपको टाइम लगा, राइट? तो उस समय आर देयर एनी ब्लेम गेम दैट कम्स इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स बिटवीन योर इन लॉज? लाइक आपका और हस्बैंड का तो क्लियर था दैट ही वाज नेवर गोइंग टू कम, बट देन देयर इज ऑल्सो इन लॉज हु आर डूइंग इट एंड दे आर कंप्लीटली टर्निंग अराउंड. हाउ डिड यू टैकल ऑल ऑफ दोज सिचुएशंस इन द पीरियड? So I think one of the best things that I have done in my life was that I had decided I don't want any gandagi. मुझे अगर divorce लेना भी है, तो it is going to be a very amicable and a very smooth process. Obviously, there are some things जो आप avoid नहीं कर सकते, but जितना मैं कर सकूंगी, and I would give that credit to my ex-husband also. We both were very, very mature, and like I said that, that love was never lost, that connection was never lost. हम जब अपने डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए भी जाते थे, वी डिसाइडेड इट विल बी अ म्यूचुअल कंसेंट थिंग. आई सेड दैट आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, नो एलिमनी, नो सम, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स. तो वी हैड अ सिंगल लॉयर हु वाज माय अक्वेंटेंस. हम उसके पास गए, हमने बोला हमें डिवोर्स चाहिए. उसने सारी फाइलिंग वगैरह की, लेकिन वो और उसके जो टीममेट्स थे वो हमेशा कहते थे कि यार हमें नहीं लगता तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है. मतलब जस्ट लुक एट यू गाइस, तुम लोग आते हो साथ में और एक दूसरे की इतनी केयर करते हो, एक दूसरे को डिफेंड करते हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हो, और फिर तुम कहते हो कि हमें डिवोर्स चाहिए. तो और हमने देखा है अपने करियर में, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज हैपेंड दैट ऑन द फाइनल डेट और जस्ट बिफोर दैट द कपल वुड बैक आउट. एंड वी थिंक दैट यू आर वन ऑफ दोज कपल्स. वी डोंट थिंक दैट यू गाइस आर सीरियस अबाउट गेटिंग अ डिवोर्स. तुम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, ओके? और मुझे भी यही लगता था. लेकिन उसके पहले काफी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जब घर वालों को ये बताया कि भाई फाइनली डिसाइड कर लिया है कि डिवोर्स लेना है, तो इन 3 सालों में मेरी घर वालों की तरफ से और मुझे सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर था इस चीज का कि मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए. Hmm. क्योंकि भाई उसने मना कर दिया और तुमको हम घर ले आए, और ये कोई मजाक है क्या? जब शादी हुई थी तो पूरा परिवार आया था, प्रॉपर पूरे समाज के सामने Hmm. शादी हुई है. तो ऐसा नहीं होता कि बस अब नहीं रहना, आपने डिसाइड कर लिया और एक मजाक चल रहा है यहाँ पर. तो तुम क्या कर रही हो बैठ के?
तुम कुछ एक्शन लो, उसके ऊपर केस करो, उसके घर वालों पर केस करो। ये बहुत ज्यादा मुझे सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था। लेकिन मेरी कंस्ट्रक्टिव सोच थी, तो मैं ये सोचती थी कि मैं हर मेरा एक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए कि चीजों को बेहतर बनाए। और मैं हमेशा सबको कहती थी कि नहीं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वर्क एंड दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज हम्म। नॉट द डायरेक्शन दैट आई वांट टू टेक। मैं किसी को ऐसे केस करके फोर्स नहीं कर सकती कि तू मुझे मेरे साथ रहे क्योंकि Hmm. वो कैसा रहना Yeah. होगा, है ना। Yeah. करेक्ट। तो जब फाइनली मैंने बोला, अपने घर वालों को बताया कि अब मुझे डिवोर्स लेना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, केस कर दो उसके ऊपर। और जो भी है, मतलब जो भी होती है नॉर्मल प्रोसीडिंग्स। एंड आई सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ दैट because this is my marriage ending. Matlab, I'm losing everything anyway. This is the biggest thing that I'm losing. Nothing that he will give me, or what, you know, the compensation is going to make up for that loss, right? करेक्ट। But पेरेंट्स अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उन्होंने बहुत खर्चा किया है शादी में। माय फादर, ही गॉट हिज प्रोविडेंट फंड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स लिक्विडेटेड। तो मैं उनकी बात समझ सकती हूँ। पर मैंने बोला कि ठीक है, जो भी हमने गिफ्ट्स उन्हें दिए हैं, जितनी भी सारी चीजें हमने उन्हें दी है, वो हम वापस ले लेंगे, गोल्ड, ज्वेलरी, एवरीथिंग। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनी कॉम्पनसेशन, बिकॉज देर इज नो वे दिस कैन बी कॉम्पनसेटेड। या। I married him for, that companionship, for that emotional support, for the love. I did not marry him for money, right? So how is money going to compensate for all the things that he couldn't give me, that he failed Yeah. to provide for me? That was number one reason. Number two was also, I think that मुझे ऐसा लगता है कि यार, अगर हम अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं और अगर हम ये क्लेम करते हैं कि वी वांट इक्वालिटी एंड एवरीथिंग, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स लगते हैं कि आप डिवोर्स होने पर पैसा मांग रहे हो उससे, इसलिए सिर्फ क्योंकि वो एक लड़का है और आप लड़की हो। had I had kids or something, it would have been a different equation. And अगर मैं earn नहीं कर रही होती, या मेरे पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं होते, या जो भी, तो I would have maybe asked, I don't know. But उस टाइम पे मुझे ये था कि यार, मैं सरवाइव कर लूंगी। आई डू नॉट वॉन्ट मनी फ्रॉम हिम एज अ कॉम्पेंसेशन स्पेशली, राइट? बट माई पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विद दिस। Hmm. दूसरा ये कि उसके पेरेंट्स तो इन्वॉल्व ही नहीं थे उसके हम्म। घर में। he used to do everything, he used to take all the decisions, so it was just the two of us. And I also knew that ये एक अगली बात है, तो अपने पेरेंट्स को मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी। उनकी भी एज है, उनकी भी तबीयत ऊपर नीचे रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, अगेन द एल्डर डॉटर थिंग, कि लेट मी हैंडल इट, लेट मी डू इट, मैं कर लेती हम्म। हूँ, मैं निपट लेती हूँ, सब कुछ कर लूंगी। तो हम दोनों ने ये सब कुछ मिलकर किया साथ में। और ब्लेम गेम की जहां तक बात है, तो लोगों ने उसे ऐसा जरूर बोला था कि देख लेना बेटा, तू पारुल क्या करेगी तेरे साथ में, वो तो बड़ी स्मार्ट है, वो तो तेरे ऊपर केस करेगी, वो तो तुझसे पैसे लेगी, ये करेगी। तो उसके मन में भी वो चीजें लोगों ने भर रखी थी, मेरे मन में भी भर रखी थी कि अरे तुम्हें क्या पता, उसका तो किसी के साथ अफेयर होगा, तुम्हें क्या पता, इतने टाइम से वो कोई Yeah. सिंगल थोड़ी Yeah. बैठा होगा, वो तो उसके घर वाले तो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे होंगे, तुम तो इतनी आसानी से छोड़ दोगी। मतलब हर तरफ से बहुत नेगेटिविटी थी। तो Hmm. वी बोथ डिड नॉट गिव इन टू दैट। एंड लोगों के मुंह फिर अपने आप ही बंद हो गए। हालांकि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत नाराज रहे थे, मुझे अभी भी याद है जिस दिन मेरा डिवोर्स हुआ है, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर, आई थिंक, दिस मोस्ट, फॉर द सपोर्ट मोस्ट, या वो एक कंफर्ट, आई had a huge fight with my dad because he was like, I cannot even explain, it was very ugly. And I felt very bad. And I discussed this also with my ex-husband because we were still in talking terms. And I told him that he knew how important my father was for me. मम्मी के साथ में इक्वेशन हमेशा से ऊपर नीचे रही है, उसे पता है, but he knew that it's very important for me to have a healthy relationship with my father. तो मैंने उसको बोला कि यार, I know वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ। Hmm. तो जो सही का जो एक क्लैश हो रहा है ना, तो इस वजह से वो बहुत हर्ट है। मैंने सही होकर भी उन्हें हर्ट किया, तो आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट। एंड ही टोल्ड मी दैट पारुल, वन डे ही विल बी एबल टू सी दैट, डोंट वरी। एंड आई थिंक ही हैज फॉरगिवन मी फॉर दैट नाउ, बिकॉज जब उन्होंने आसपास अपने देखा कि कितनी गंदगी होती है, वी हैव, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में वी हैव डिवोर्स केसेस गोइंग ऑन फॉर 7 years, 8 years, Yeah. 5 years, या। या। एंड उसके बदले कुछ हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कुछ बहुत कुछ मिल रहा है या कुछ, इट इज एन अगली पाथ, वी ऑल नो दैट, राइट? तो आई थिंक दे हैव नाउ रियलाइज्ड कि वॉट एवर शी डिड,
it was a mature thing to do. And also मुझे ये था ना श्रुति कि मैंने 3 साल ऑलरेडी अपनी लाइफ के गवा दिए हैं इसमें। अब जब मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो मुझे और समय और एनर्जी इसमें नहीं गंवानी है। वो हम्म समय और एनर्जी मैं अपने आप को मूव ऑन करने के लिए, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने में लगाना चाहती हूँ। एक दूसरे कॉम्प्लिकेशन में मुझे घुसना नहीं है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई हैव जीरो रिग्रेट्स। मुझे बहुत खुशी है कि आई चोज दिस पाथ। एंड आई फील दैट अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें ना, तो आई थिंक आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट मोर देन आई वाज अर्निंग। बिकॉज मैं हमेशा यूनिवर्स को बोलती थी कि if you have that abundance for me, please make it come to me in a different way. If it is meant for me na, then I don't want it as alimony or some yeah settlement. yeah Because Brilliant it thought. should be your I own thing yeah exactly, the source doesn't matter. हम्म और जिंदगी भर ना एक वो रहता भी, लेट्स से कि बहुत लड़ झगड़ के मुझे कुछ एक चंक ऑफ मनी मिल जाता, मैं लाइफ में कुछ भी कर लेती ना आगे, तो मुझे हमेशा लगता कि यार बिकॉज आई हैड दैट चंक ऑफ मनी आई वाज एबल टू डू इट। yeah But now whatever I'm doing and whatever I will do, I know that I'm doing it मेरे खुद के बलबूते पे, and I'm very very proud about it. Brilliant thought. I think Parul, it's commendable to think that ways, because in Indian society it's very hard, and to go mutually first. I think respect for you and your ex-husband that you both guys decided to yeah come on a same page. I think I even in breaking up your relationship, you guys were both very mature Yeah, in the proceedings of yeah, not just divorce. I would say in the proceedings of life, yeah, that if you guys were clear that this is not going to work out, you guys chose the cleaner way, yeah. and you guys chose to honor your love and relationship rather than go with the usual path of Path of fighting and blaming bullying and and money and all all of of those those things coming out, things. because it's very hard. And you know 2003 is when we filed mom and dad filed a divorce case, and we got the degree in 2008. So it was a process of 5 years, multiple times going and going to the court, going to the advocates, talking to them, that repeat, that energy drain. I can clearly understand, and hats off to you guys. Thank you so much. Matlab, you've done a commendable job. Thank And you, I would thank like you. to point this out to our audience also, Yeah, that usually हमारे comment section में या इन किसी भी ऐसी रील्स के comment section में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सिर्फ यही देखने को मिलता है कि देखो ये लड़की, तो देखो जैसे पारुल ने बोला ना कि लोगों ने उनके एक्स को भड़काया था कि देखना ये तो तुम्हें बेटा बहुत पैसा लेके जाएगी, केस करेगी एंड ऑल दैट. सो देयर इज this perception in the society that all women do this when it comes to divorce, but it's not true. yeah, Some may be doing it for the false reasons, but there are also people who take the more mature path, yeah. the more uh, honorable thing to do True. that they एक have और done. चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। जब भी कोई शादी टूटती है ना, तो हमेशा एक नैरेटिव होता है ना कि एक पक्ष होता है आपका, या तो आप लड़की के सपोर्ट में होगे या लड़के के सपोर्ट में होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किससे ज्यादा क्लोज हो या किसकी फैमिली के मेंबर हो। बट मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट अबाउट सही कौन है गलत कौन है। जो इंसान गलत होता है ना, उसके लिए भी डिफिकल्ट होता है। और कई बार ना सही गलत उतना ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है, हो सकता है कभी भी दोनों नहीं होता. सही हो, या बट सिचुएशंस खराब है, राइट? तो द पेन दैट दे आर गोइंग थ्रू is so much bigger than all of these petty things. And society या family जो है ना, वो ये नहीं सोचती कि the inner turmoil or the mental trauma that they are going through, that is not going to get better with all of this. It's Mm, only going to get worse. तो yeah, मैं ये सजेस्ट भी करती हूँ सबको, चाहे वो पेरेंट्स हो या वो खुद कपल हो या एक लड़का लड़की हो, कि तुम्हें लग रहा है कि दिस विल गिव यू सम काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन और सम काइंड ऑफ या जस्टिस। आपको लगता है मुझे जस्टिस मिला, देयर इज नो जस्टिस इन दिस। अ रिलेशनशिप ब्रेकिंग, अ मैरिज ब्रेकिंग इन इटसेल्फ इज सच अ बिग लॉस या that nothing can bring justice, or nothing can actually ना आपके ये इस जख्म पे पैसे का मलहम काम नहीं करेगा। हो सकता है आपको एक मोर कंफर्टेबल लाइफ दे दे थोड़े टाइम के लिए, बट वो पैसा भी इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। अगर आपने अंदर से अपने आप को हील नहीं किया ना, तो दैट मनी इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी पीस और हैप्पीनेस टू यू।
और मुझे ये दिख रहा था कि my husband was also very broken. ऐसा नहीं था, आई वॉज नॉट सो फोकस्ड ऑन माई ओन पेन कि मुझे ऐसा लगे कि हाय मेरे साथ ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया. आई कुड सी दैट he, even though he is ending the whole thing or he was the one who wanted to end it, it's so difficult for him, it's so painful for him. तो मैं वो रिवेंज मोड में नहीं थी. And I also would like to, take this opportunity to say that I still think that my ex-husband was one of the best people that I've met in my life. I absolutely love him. I adore him. I respect him so much for everything. So I was not taking all of this away from him. I could see that he's also a human being who's going through something. This marriage was a big deal for both of us. This relationship was a big deal for both of us. Then none of us wanted to break it, right? मतलब हमने when we entered it, हमने तो यही सोचा था ना, this will be a happily ever after. तो ये पर्पस तो किसी का भी नहीं था. Situations happened and all of that, लेकिन मैं उसको पनिश नहीं करना चाहती थी उसके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसकी कोई ये षड्यंत्र रच रहा है वो मेरे खिलाफ कि मैं उसको बदला लूं. इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज नॉट अ Yeah. फाइट, इट वाज नॉट यू अगेंस्ट मी, इट वाज अस अगेंस्ट द सिचुएशन एंड आई थिंक जस्ट लाइफ. So now that हमने वो journey cover कर ली, right? That 5 months of marriage and 3 years of divorce or whatever. Once your divorce happened, is when it was like Reality. final seal, right? Now the reality hit you, and I can already see that how maturely you have dealt with everything. But the fact that now today you are able to still say these words, that I am able to love my husband, he is still the good man that he was when you married him and stuff like that. There's no bitterness. There's always this understanding that it was just circumstances, that you guys were not meant to be together. There must have been a lot of healing that you had to go through. There must have been a lot of bad days where you were like कि why me, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ. So I wanted you to somehow, if it is possible, to break it down for those women who are in that state right now, that why me, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का. What can they do, or how can they see light in such a dark phase of their life? Were you able to see light? What helped you to heal? Anything that you can give us would be amazing. या आई डोंट थिंक मैं उतनी क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन बहुत अलग होती है, बट स्टिल जो मुझे हेल्प किया मैं हाँ, बताना from your चाहूंगी. experience. Right. So, first of all, it was not easy. It was very difficult and it was ugly. It was painful. It felt like, uh, matlab, I just didn't die. Everything else happened, if I can put it that way. So, मुझे याद है कि the day I got divorced, for 3-4 days, I think I just kept crying and puking and crying and puking. It was, even physically, it was very difficult for me to process. And your body takes a toll. I remember उसके बाद में मेरी my whole menstrual cycle and everything, it just went for a toss. And I would sleep for 18 hours. It was just erratic. My life was really difficult. So after my divorce, on the 4th day, my husband called me up and he said, "What are you doing?" And I said, "Nothing." I was so happy. I was like, "Okay, finally, maybe he realized that we did something wrong." I am a delusional person, Shoki. You know that. मैं बहुत fantasy world में जीती हूँ. So he was like, "Okay, let's go out. Have you eaten something?" I said, "No, I haven't." He said, "Okay, let me take you out for dinner." And he took me out for dinner. And you know what I felt कि ये तो ना मुझे अपनी शायद किसी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला है कि okay Parul, now that everything is over, I want you to meet this woman who I'm going to marry now. I just didn't want any negativity to be between us, कि लोगों से पता चले तुझे मैं ही तुझे मिलवा देता हूँ. मैं ऐसे गई थी उससे मिलने. But he was like, "I just wanted to take you out because I knew that you would be going through a difficult time." So that's how amazing, he was. And then he also got me a gift. Wow. And Wow. I mean, it said we had gone somewhere together and we had got that for our home. It said hope, right? And we had thought that after we get married, we'll put it in our new home, but we never opened it. So he got me that. He said, "I'm giving you hope, not for us, Hmm. but for life." And oh my God,
it's still giving me goosebumps. So yeah, it was like that. For a really long time I was in denial. I thought that maybe some miracle will happen, we'll get back together again and everything. After that, it came in waves. Some days were really good. I felt liberated also. I'm not gonna lie. In a way, I felt like this weight was off my chest. I felt so free because for so many years, well, 2018 February I got married and November 2021 I got divorced. So this whole thing, कोई क्लैरिटी नहीं थी. देयर वाज नो आर या पार. बीच में आप कहीं लटके हुए हो, आपको कुछ पता नहीं, आप लाइफ में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो ना. कुछ आप अपने लिए कुछ ड्रीम्स हैं आपके, ना गोल्स हैं, क्योंकि सब कुछ पूरी एनर्जी आपकी इसमें फोकस्ड है. Hmm. और आपकी लाइफ में आगे क्या होगा ये इस पे डिपेंडेंट है कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा, वापस तो साथ में नहीं रहने लगेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. हुँ। तो मैं बहुत फ्री फील कर रही थी कि पार हो गया. भले वो मेरी जो इच्छा थी वो नहीं हुआ, बट आर्या पार कुछ तो हुआ, तो वो बहुत फ्रीइंग था. But there were days when I felt like I just wanted to die, because I was like, what's gonna happen now? There was, but like I said, मैंने काफी अपने ऊपर वर्क तो किया था इन कुछ सालों में. तो उतना मेरे लिए सब कुछ इतना डार्क भी नहीं था. There was a lot of light also. I would say this year, 2024, is when I can finally say that uh, there have been no dark days. But I think even till last year, that happened. And coming to your question now, what helped me and what I think can help others is, like I said, going within. और मैं बहुत ज्यादा ऐसे स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है लाइफ में, it's happening for a reason. Rather than focusing on what happened, please focus on why it happened, and not why it happened कि मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, but what is it trying to teach me and how it is helping me in my life path. और मैं अपने आप को कैसे अपने अंदर से वो चीज हटा सकती हूँ जिसने इस चीज को अट्रैक्ट किया है मेरी जिंदगी में. और मुझे लगता है कि वैसे भी इवन इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम इन लाइफ, आई थिंक यू शुड जस्ट do something for yourself. Especially for women, I would like to just say one thing that is going to make your life so much better is ask yourself who you are and what is your purpose. क्योंकि 90% of the women have never asked them. लड़के फिर भी एक बार, I would say everyone should do that, but लड़के फिर भी एक बार ना सोचते हैं बैठ के कि यार अब मुझे क्या करना है लाइफ में आगे, चाहे वो करियर हो या कुछ और गोल्स हो. But most women never ask themselves that. And this question will actually start a new journey for you. And that journey will take you places. Whether you are single, about to get married, not looking to get married, or married happily with kids. I think that little bit of spirituality, little bit of self help, self work, meditation, and healing, because we all need healing. आपके साथ कुछ गलत हो रहा है इसलिए आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है. हमारी कंडीशनिंग तो सभी लोगों की हुई है ना. और हमने बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इस सोसाइटी से बहुत सारी टॉक्सिक चीजें इस जर्नी में ले ली हैं. तो हमें नहीं पता कि विदाउट ऑल ऑफ दिस कंडीशनिंग हु वी आर. If Parul was born in America, she would be a different person. If Parul was born to a different parent, she would be a different person. तो Parul असल में कौन है, minus all of these things, वो पारुल के लिए जानना बहुत जरूरी है. और वो उसे एक बेटर जिंदगी देगा. तो मुझे लगता है कि हमें वेट ही नहीं करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस का जो हमें फोर्स करें. होता है ना, मम्मी ने जब तक मारा नहीं है तब तक पढ़ने नहीं बैठोगे, पहले ही पढ़ने बैठ जाओ तो मार से बच सकते हो तुम लोग. इट विल हेल्प यू इवेंचुअली, आई फील. And is there so there are a lot of women who come on our podcast comment sections and emails and stuff like that, where they want to get out of a bad relationship, but exactly those things, that stigma of being alone or not knowing who they are, like you just said, keeps them in it, and makes them bitter in any case towards the relationship, towards the husband, and overall life in life. Do you have any words of help, wisdom, or from your experience to give to those people who are stuck in an unhappy marriage,
but cannot take that plunge, cannot take that leap of faith to leave. Like you, because I'm asking this because you just now said that even though you were broken, you felt like there was a weight lifted off you of those 3 years of struggle and trying to make it work. मेरे खुद के लिए इतना डिफिकल्ट था कि मैं किसी को क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस सिचुएशन में होते हो ना, एक्चुअली हम जैसे हमने कई बार पढ़ा है और देखा भी है कि जब आप उस सिचुएशन में हो तो आप एक लिमिटेड विजन है आपका। जब आप अपने आप को उससे थोड़ा बाहर रख के देखते हो तो आपको एक बिगर पर्सपेक्टिव मिलता है। तो उस लेकिन कितना भी कोई स्मार्ट हो, कितना भी कोई वाइज हो ना, जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो आप अपने साथ वो नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपनी फीमेल फ्रेंड्स को स्पेशली और मेल को भी ये बोलती हूँ कि ये सोचो कि अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड तुम्हारे पास ये सेम एग्जैक्ट सिचुएशन लेके आती तो तुम उसे क्या सलाह देती, और वो सलाह अपने आप को दो। क्योंकि हम्म, कई बार हमें लगता है कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, लेकिन सामने वाले को लगता है नहीं नहीं तू कर सकती है, यू नो यू शुड डू इट। yeah, तो गिव दैट एनकरेजमेंट टू योर सेल्फ एंड ऑब्जेक्टिवली लुक एट दिस होल सिचुएशन कि तुम अगर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते तो क्या तुम इस शादी में रहने के लिए एडवाइस करते किसी को। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शोकी की सेल्फ लव की जो कमी होती है ना, वो ही ज्यादातर आपको ऐसे रिलेशनशिप्स में स्टक रखती है। तो और ऐसा लगता है हमें कि नहीं नहीं हम अपने आप से प्यार करते हैं एवरीथिंग, लेकिन आप किसी भी लव्ड वन को सोचो, लाइक आई सेड, तो अगर मैं शोकी से प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा और शोकी मेरे पास आती है कोई प्रॉब्लम लेके और मैं शोकी को उस प्रॉब्लम में देख ही नहीं पा रही हूँ, आई फील एंग्री, आई एम लाइक व्हाई शोकी इन दिस, शोकी शुड गेट आउट ऑफ दिस, बट आई एम नॉट फीलिंग द सेम फॉर माई सेल्फ, देन वेयर इज द लव, राइट। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है, हमें हमेशा दूसरों के लिए जीना सिखाया जाता है, सैक्रिफाइसेस करना सिखाया जाता है। कोई अपने लिए कुछ करने से पहले हम इतने बड़े गिल्ट ट्रिप में आ जाते हैं कि वी डिसाइड नॉट टू डू इट। तो उस कंडीशनिंग को ब्रेक करना, दैट इज व्हाई आई वुड वांट टू गो बैक टू माय अर्लियर पॉइंट कि अपनी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। ब्रेवरी कम्स ओनली आफ्टर दैट। कई बार मैंने ये भी देखा है लड़कियां इतनी सेल्फ लव में है कि जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, दे आर लाइक नहीं मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, जबकि वो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। तो ये भी इट्स द ऑपोजिट ऑफ सेल्फ लव, इट इज नॉट सेल्फ लव, वो भी कहीं ना कहीं लैक से आ रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे ये भी लगता है कि जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि अगर मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। जैसे एक लड़की है अभी रिसेंटली जिसकी मैंने बात सुनी कि वो एक रिलेशनशिप में है 2 साल से, भयंकर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, नॉट सर्विंग हर एट ऑल, गिविंग हर एंजाइटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ यू नो इश्यूज, बट शी इज लाइक हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ इट, मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं। एंड आई वाज टेलिंग हर कि अगर तूने 50 लाख एक बिजनेस में लगाए हैं और तेरे 40 लाख बर्बाद हो डूब चुके हैं, गए। 10 लाख बचे हैं, तो तू या तो 10 लाख जो है उनको भी खत्म होने का वेट कर और इस बिजनेस में तू लगी रहे, या फिर द स्मार्ट मूव वुड बी टू टेक दोस 10 lakhs एंड एग्जिट, बिकॉज तेरे आगे की जिंदगी कितनी बड़ी है। तो 2 साल सोच रहे, एंड आई डोंट गेट इट हाउ women don't understand this. Even men, I have seen some men doing the same thing, but women do it more Yeah. yeah, because women, I think, are less practical. Not trying to stereotype, but we have been conditioned to yes, Yeah, I I was think just our going to heart say more. that. it's all about how the society has made these norms, right? For male it is Yeah. okay to give a divorce and move out and go into a second marriage and a third marriage and fourth marriage, whatever xyz. For females इट्स अ स्टिग्मा, अगर आपको डाइवोर्स मिल गया तो आप घर बैठो, आपको कोई भी नहीं रखेगा, सो दैट्स द होल थिंग। या तो ये बहुत बड़ा रीजन है ना, उनको लगता है कि डिवोर्स, चलो ठीक है डिवोर्स ले भी लिया तो हमारी जिंदगी कौन सी बेहतर होने वाली है, इससे अच्छा यही बर्दाश्त कर लो, क्योंकि Hmm. कुछ भी परफेक्ट तो होता नहीं है। और लोग भी आपको यही बोलेंगे बेटा देखो जिंदगी आसान नहीं Yeah, है, yeah, तुम it's छोड़ दोगी तो reinforced. भी परफेक्ट नहीं है। तो बाद में जो तुम प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करोगी अकेले रहकर, उससे अच्छा है कि ये वाली प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर लो। बट मैं हमेशा ये मानती हूँ शोकी कि यू हैव टू पिक योर बैटल्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू एंड व्हाट इज नॉट। तो अकेले रहने के अपने सुख दुख हैं और शादी में रहने के अपने सुख दुख हैं। आपको कौन से सुख दुख चाहिए अपने जीवन में, वो आपको चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कांट कीप कंप्लेनिंग इफ यू आर नॉट Yeah, yeah. रेडी टू टेक दैट स्टैंड फॉर योरसेल्फ।
करेक्ट। coming from someone who couldn't take that stand for such a long time, but अभी तो मैं बोल सकती हूँ ये बात. Yeah, and I think it's a very important thing for all of us women, regardless of whether they are going through divorce, whether they are in a good relationship or a bad relationship or a happy relationship. They need to take a stand, is what I have realized in my life. Because most of the problems जो हमारी लाइफ में खड़ी होती है वो यही होती है क्योंकि हमको बचपन से बोला ही नहीं गया होता है कि स्टैंड लेने की जरूरत है Yeah, किसी भी चीज पे. yeah. यू हैव टू सिखा दिया एडजस्ट. जाता है इसको छोड़ के. हाँ, सब कुछ सिखा दिया जाता है सिर्फ एक इस चीज इस को चीज छोड़ को के. छोड़ के. करेक्ट, करेक्ट. तुमको इतना सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, बट ये नहीं करना है कि सोसाइटी आपके लिए एडजस्ट होगी. सो इट्स दैट थॉट दैट सोसाइटी एक नीड्स और टू. बहुत बड़ी बीमारी है जो मेरी सारी फ्रेंड्स में मुझे दिखती है, मेरी मदर में मुझे दिखती है, हर फीमेल में मुझे दिखती है, अच्छा बनने की, कि मुझे बुरा नहीं बनना है. हाँ, और देर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको देखकर तो मुझे एक्चुअली गुस्सा आता है क्योंकि वो दिन भर कंप्लेन करेंगी, दिन भर लाइक इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, सास ने कर दिया, ननद ने कर दिया, देवरानी ने कर दिया, पति ने कर दिया. एंड आई एम लाइक, पर तूने ऐसा क्यों नहीं बोला? शी इज लाइक, फिर मैं बोलती तो फिर मैं बुरी बनती. अरे तो अच्छी नहीं है अभी भी, तुझे क्या लग रहा है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी. हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं बोल रहे तो हम अच्छे. देखो अभी मैंने अपनी मम्मी को भी ये बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दैट आई हैव रीच्ड अ पॉइंट. सो एनी टाइम शी गेट्स लिटिल पिस्ड ऑन एनीथिंग आई एम सेइंग, या वो मुझे बताती है कि बेटा देखो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा. बोलती हूँ मम्मी मैं इतनी बुरी बन चुकी हूँ दुनिया के सामने कि अब मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और मुझे कुछ भी बोलने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बुरी और क्या ही बन जाऊंगी, राइट? तो आई थिंक दैट वे ऑल्सो आई फील वेरी लिबरेटेड, बट मोस्ट women डोंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर आंसरेबल टू पीपल अराउंड देम. बट मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा बुरा बन के जो मेंटल पीस, जो खुशी और जो एक सुकून मिलेगा ना, वो अच्छा बन के रहने में कभी भी नहीं है. तो ये नहीं है कि बुरे ही बन जाओ दुनिया के सामने, बट बुरे नहीं बनना है इस डर से ना, अगर तुम गलत चीजें बर्दाश्त करोगे दैट्स ऑन यू एंड नो वन एल्स. सो यू वुड हैव आल्सो सीन दिस शो कि अभी ये देवरानी जेठानी वाले बहुत सारे मीम्स भी चलते हैं और बहुत हर जगह पे एक डायनामिक होती है थोड़ी सी टॉक्सिक सी. मैंने उस दिन एक कमेंट पढ़ा इंस्टाग्राम पे जो मुझे इतना सही लगा. किसी ने बोला था कि फर्क इतना है कि देवरानी ने आते से ही अपने लिए बाउंड्रीज सेट की, देवरानी ने आते ही बुरा बनना मंजूर कर लिया, और जेठानी जो है वो अभी तक अच्छी बनने में लगी हुई है, अपने लिए आज तक स्टैंड नहीं ले पाई है, विच इज वाई जेठानी दुखी है. विच इज yeah. सो ट्रू, राइट? Yeah. So, coming to the whole idea of Devrani, Jethani, and Indian society, what we talk about, do you think the thought process in Indian society is changing through divorce? And the second thing is, have you noticed any positive changes in the same? And especially when you live in Indore, do you think that is happening? You were telling about some stories, so we wanted to understand the perspective from tier 2, tier 3 cities, and what is happening there. Do you have any ideas on those lines? Definitely it has changed, it has gotten really better. मुझे लगा मेरे डिवोर्स के बाद में ही मुझे ये बात समझ आई कि कैसे बदल रही हैं ये चीजें, क्योंकि उसके पहले तक मैं भी उसी समाज का हिस्सा थी ना जिनके लिए डिवोर्स एक बहुत ही बुरी चीज है, एक टैबू है. जब किसी का डिवोर्स होता था तो हम सोचते थे अरे सुन सुन तुझे पता है उसका डिवोर्स हो गया. तो आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. कुछ टाइम तक मुझे भी यही लगता था कि हर इंसान जो मुझे देख रहा है वो यही सोच रहा है मेरे बारे में कि देखते किसका डिवोर्स हो गया, राइट? बट मैंने देखा कि बाद में धीरे धीरे आई कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंदौर हु वर डिवोर्स्ड, एंड मुझसे आई वुड से दे वर फार ब्रेवर देन मी, दोज मेन एंड वुमेन, बिकॉज उन्होंने बहुत जल्दी अपने लिए स्टैंड लिया. उन्होंने अपने आप को दे वर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांटेड एंड व्हाट दे डिडंट वांट इन देयर लाइफ. तो उससे मुझे भी बहुत हिम्मत मिली, और आई फेल्ट सीन ऑल्सो एंड आई फेल्ट लाइक इट्स ओके. और मुझे लगता है कि वो डिस्टेंस थोड़ा कम हो रहा है शहरों के बीच में, देशों के बीच में. हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पर वी आर मोर टुगेदर देन एवर. तो अगर आपके आसपास आपको नहीं भी दिख रहा हो ऐसा माहौल, तो सोशल मीडिया पे और इधर उधर देख के आप एटलीस्ट यू आर इन अ बेटर पोजिशन. आपको वो कंफर्ट एज कम्पेयर टू 5 years अगो और 10 years अगो ज्यादा मिलता है. इंदौर में मैं कहूंगी कि लोगों की सोच बदल रही है, बट अभी भी कहीं ना कहीं
there is a mix of crowd actually. Hmm. So there are people who are very, very positive and, encouraging, and, they'll be very, I would say, outgoing in their approach. They are educated, they are more aware of what's happening. And at the same time, क्योंकि यहाँ पर सिंधीज और बनियास प्रीडोमिनेंटली इंदौर में ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से मुझे लगता है कि हम उतने एक्सेप्टिंग नहीं हो पाए हैं इस चीज के. लेकिन हमारी जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो चेंज मुझे दिखता है. आई हैव नेवर मेट अ पर्सन फ्रॉम माय जनरेशन ऑफ माय एज हु हैज टोल्ड मी कि यार नहीं यार ये तो गलत हुआ, ये तेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये तूने क्यों किया या जो भी. पर हाँ, दूसरी शादी का प्रेशर बनाने हम्म. वाले सेम लोग हैं मेरे जनरेशन के भी और वो भी. तो वो कहीं ना कहीं नहीं बदला है. उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि भाई ठीक है चलो वो नहीं हुआ तो अब क्या, अब तो अब दूसरी तो करो, करो, आगे what are you अब बढ़ो. कर waiting लो for? Yeah, And moving that on only means another marriage. another एग्जैक्टली, तो वो marriage. मुझे कहीं ना कहीं खटकता है. मुझे लगता है कि इंदौर में ये चीज ज्यादा है. अगर मैं शायद मुंबई में रह रही होती, बैंगलोर में रह रही होती, पुणे में रह रही होती, तो इतना प्रेशर नहीं होता मुझ पे. तो वो Hmm. डिफरेंस डेफिनेटली है. Okay. Hmm. And is there anything you wish that people knew about going through divorce in India? Like maybe the proceedings, or the fact that how your life changes after the whole like the stigma of a divorcee against your name getting attached, or the fact that it does not matter anymore, like you were saying right now. So is there something, even if it is the fact that you found other people, there is a community of such people who are okay with this word and doing this in life and being okay with the whole thing. So is there something you wish that people understood better about going through divorce in India? The number one thing that I want people to know about divorces is that it's okay. Yes. That's Yes. the number one thing. Once you achieve that state and once you accept that, I think everything else is secondary. क्योंकि हमारे देश में स्पेशली शादी को एक पर्पस बनाया हुआ है. तो ऑफ कोर्स डिवोर्स भी मतलब इस लाइक कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, इसलिए क्योंकि शादी उतनी बड़ी चीज है हमारे लिए. अगर आप बाहर के देशों में देखो, ऐसा नहीं कि वो लोग शादी नहीं करते. आप अगर वेस्टर्न कल्चर में देखो, तो वहां पर शादी इज अ माइलस्टोन ऑफ लाइफ. इट्स नॉट द एंड और द पर्पस. वो आई थिंक लोगों को यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि शादी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स अ चैप्टर, इट्स अ माइलस्टोन. अगर हम शादी को उतना ज्यादा सीरियसली लेना छोड़ देंगे ना, तो फिर हम डिवोर्स को भी उतना सीरियसली लेना छोड़ देंगे. क्योंकि इट्स लाइक आपने कुछ एक कोर्स किया, आपने एक जॉब में गए और वो चीज वर्कआउट नहीं हुई, तो आप अब जैसे मैं अगर तुझे बोलूं शोकी कि यार आई डोंट थिंक जॉब इज फॉर मी, आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन वर्क, बी सेल्फ एम्प्लॉयड और जस्ट वर्क फॉर माई सेल्फ. आर यू गोइंग टू जज मी? नो, राइट? तो because not everyone is made to work under someone. Some Yeah. people have leadership qualities, some people are more better with groups and everything. तो वैसे ही मुझे लगता है कि शादी is one of the milestones. If it happens for you, great. If it doesn't happen, it's great. Whatever works for you. If it happens and it's not working out, nothing wrong with it. Our aim should always to be in a better place than you were yesterday, to have a better life, to have a happier life. And मुझे एक चीज समझ में आई है after going through all of this, after going to so many workshops and retreats and getting into spirituality, that the one aim of life, at least for me, is to be happy. Everything that is helping you achieve that is in alignment with your path. Everything that is not helping you achieve that, it should not be a part of your life. And on the face value, ये काफी एक ऐसा selfish type का statement लग रहा होगा. There is more to it, but in short, I want to say that divorce, if it is making your life better in any way, if it is giving you more mental peace and everything, it's perfectly fine. अब उस शब्द से अपना एक टैबू और स्टिग्मा हटा दो. मुझे ना बहुत टाइम तक ऐसा फील होता था कि जब भी कोई मुझे देखता होगा उसे लगता होगा ये एक डिवोर्स्ड लेडी है, और लगता भी होगा अभी भी. बट मुझे नहीं लगता. अब बहुत टाइम तक लगा, बट अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी जिंदगी, मैं तो अभी भी वही हूँ ना. Yeah. मेरे फ्रेंड्स अभी भी वही हैं. मैं अभी भी अगर मैं दिल की अच्छी इंसान थी तो अभी भी अच्छी हूँ, बुरी थी तो अभी भी बुरी हूँ. सो
आपको ये सब होने के बाद में रियलाइज होगा कि आप जिस चीज को बहुत बड़ा समझ रहे थे ना, वो उतना बड़ा है नहीं, बट उस वक्त बहुत बड़ा लगता है। आई गेट इट, आई हैव बीन थ्रू दैट। बट लाइक आई सेड, थोड़ा सा बाहर निकल के उससे देखो, और ये देखो कि बुढ़ापे के लालच में कुछ भी नहीं करना है। माय मदर, शी केप्ट Oh सेइंग दिस टू God, मी, yes. एक तो वो हर दूसरे दिन ये बोलेंगी कि तुम बच्चों की वजह से तो हमारी जिंदगी ही खराब है, हम इतने डिप्रेशन में, हम ये है वो है। एंड देन वन डे शी इज टेलिंग मी, बेटा देखो आजकल कितना डिप्रेशन हो रहा है दुनिया में अकेलेपन की वजह से, और अगर तुमने शादी नहीं की, तुम अकेली रह जाओगी तो तुम्हें भी डिप्रेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मम्मी लेकिन आप आपके पास तो पूरा परिवार है, बट आप हर दिन बोलती हो कि मैं तुम लोगों की वजह से डिप्रेस्ड हूँ। सो अकेलापन इज नॉट द गारंटी फॉर डिप्रेशन, और सबके साथ रहना इज ऑल्सो नॉट द गारंटी कि डिप्रेशन नहीं होगा। तो शी इज टेलिंग मी, इट्स वेरी फनी, शी इज टेलिंग मी दैट हाँ लेकिन डिप्रेस्ड हो तो तुम लोग हो तो सही ना साथ में, ऐसे बट वी आर द रीजन। तो प्लीज मेक अप योर माइंड वेदर इट्स गुड टू हैव चिल्ड्रन एंड फैमिली और नॉट। सो शी इज लाइक, बेटा बुढ़ापे में ना बहुत तुम्हें लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और मुझे लगता है शोकी, एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल इन्वेस्ट किए एक शादी में। आपको लगता है कि अब जाके अगर मैं स्टेप आउट करूंगी तो बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा, आई विल हैव नो कंपेनियन। ये जो डर है ना, इसे अपने दिमाग से निकालना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो गारंटी दैट देयर बी अ बुढ़ापा। Yeah. Yeah, The uncertainty can come. कोरोना के टाइम true. पे ये सब कोरोना के टाइम पे ये सब हो रहा था मेरे साथ, राइट? तो सबसे पहले तो मुझे ये हिट किया कि आई माइट नॉट बी अलाइव टुमारो। Yeah. हो सकता है मेरे पास, मैं अपनी लाइफ ना अभी सिर्फ एक 5 ईयर स्कीम पे जी रही हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं अगले 5 साल जिंदा रहने वाली हूँ, और हर दिन मैं यही सोचती हूँ, उससे ज्यादा का मैं सोच ही नहीं रही हूँ। तो आप अपनी जिंदगी के जो पीक ईयर्स होते हैं वो आप खराब करोगे ये सोच के कि बुढ़ापे में कोई साथ होगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आपका बुढ़ापा ना हो। दूसरा हो सकता है कि योर स्पाउस डाइज बिफोर यू एंड यू स्टिल हैव अ लोनली बुढ़ापा। तो ये ना फालतू के इतना फ्यूचरिस्टिक लालचों में आके अगर आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, तो ये बहुत खराब चीज है। आई थिंक अगर ये डर से हम उबर पाए ना कभी, तो डिवोर्स इतना हवा नहीं लगेगा हमें। और एक और चीज है शो की, जो मैंने अभी बदलते देखी है हमारे आसपास। पहले जब वो फ्रेंड्स जो हैप्पीली मैरिड थे, जिन्हें देखकर मुझे लगता था कि यार अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अकेली रह जाऊंगी, और ये सब के पास में इनके पार्टनर्स होंगे, और मम्मी पापा भी यही कहते थे, बेटा जिन दोस्तों के पीछे तुम अभी पगला रहे हो ना, ये तो क्या है, अपने बाल बच्चों में खुश रहेंगे, ये तो अपने परिवार में खुश रहेंगे, तुम रह जाओगे अकेले। अब उन सबके डिवोर्स हो रहे हैं। तो, तो मुझे लगता है चलो ठीक है, नॉट ऑल इज लॉस्ट। Yeah. तो ठीक है, मैं अकेली हूँ, ये भी इवेंचुअली अकेले हो जाएंगे, तो वी आर ऑल गोइंग टू हैव फन इन आवर बुढ़ापा। But this is a very valid point, because I'm realizing करण और मैं जब अभी हम लोग हमारे वेकेशन पे लंदन गए थे, there was one very very remarkable thing that stood out everywhere, whether it was London or Scotland or Edinburgh, wherever we went, वहाँ पे ना 80 प्लस वाले लोग भी कॉन्स्टेंटली एक्टिव थे, like whether they were volunteers in museums, or whether they were just doing traffic duty, without any purpose of getting paid for things. They were active and they were keeping themselves busy. So एक जो ये इंडिया में हमारे ये लाइक स्कैम नंबर 130 बोलते हैं ना उसको, कि Retirement. हाँ, तो जैसे हम लोग अगर साथ में हैं, करण और मैं, और हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, तो हमें बुढ़ापे का स्कैम ये बेचा जाता है कि बच्चे नहीं पैदा करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान नो, कौन रखेगा? Correct. तुम आई नो। डिवोर्स्ड हो, तुम अकेली हो, तो तुम्हें ये स्कैम बेचा जा रहा है कि अरे तुम्हारा लाइफ पार्टनर नहीं होगा तो बुढ़ापे में क्या रहेगा? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोसाइटी ने इंडिया में एक वो बनाया है ना, Taboo. प्रॉब्लम बनाया है कि Problem. बुढ़ापा बुरा होता है. इट्स नॉट राइट, नेसेसरी. We as collectively the millennials who are feeling their budapa in their 30s, who are exhausted, एग्जैक्टली, Yeah. who are having midlife crisis at 35 instead of 50, we एग्जैक्टली, should definitely create some sort of satyagraha movement to tell people कि बुढ़ापा बुरा नहीं होता है. You have एग्जैक्टली। to just be happy with yourself, like you said beautifully, that if you love yourself, if there is enough self love in you, whether you are married, divorced, single, buddhi or jawan, you will be happy within yourself, and that will determine the way
you are healthy or not, that will determine the way you look good or not, you feel well or not. Yeah. So the moment we मुझे break लगता है that कि barrier, it will be मुझे great. लगता है कि आप अगर इंडियन विमेन में देखो ना, तो आपको ये दिखेगा कि आफ्टर एन एज ये जो सारे इश्यूज उनमें आने चालू हो जाते हैं, थायराइड हो गया या बाकी रिप्रोडक्टिव इश्यूज या जो भी हैं, जो कि काफी साइकोसोमैटिक होते हैं इन अ वे, Yeah, yeah, और उसकी वजह भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस है. लाइक आई कैन नॉट टेल यू द काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज माई मदर इज फेसिंग, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स वी हैव गॉटन फॉर हर, द काइंड ऑफ टेस्ट. कई सालों तक तो रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती थी, उसमें कुछ आता ही नहीं था कभी. अब जाके आने लगा है क्योंकि सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो वो सब कुछ स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, वो पैनिक इंड्यूस्ड है, वो डिप्रेशन इंड्यूस्ड है. तो मुझे ये लगता है कि ये जो हमने एक बना रखा है अपने दिमाग में कि अकेले रहना, लोनली होना होता है, और आप डिप्रेस हो जाते हो, सबके साथ में रहते हो नहीं होते हो. मुझे लगता है आप सबके साथ में रहकर भी यू कैन बी गोइंग थ्रू अ पथेटिक मेंटल हेल्थ, एंड यू Yeah. कैन बी यू नो वेरी वेरी अनहैप्पी. तो yeah, yeah. marriage or companionship doesn't guarantee happiness, and I feel that we should learn from this. हम हमेशा ना वेस्टर्न कल्चर को एक तो ना बहुत ही डार्क और नेगेटिव उसमें पेंट करते हैं कि देखो वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है, लाइक यू पॉइंटेड आउट राइट नाउ हाउ पीपल आर देयर. तो ये भी एक एडवाइस है जो मैं देना चाहूंगी टू ऑल द यंग एंड वट एवर एज यू आर इन. रीड मोर, ट्रैवल मोर, try to Explore. expand your Horizon that consciousness you are and there. your एग्जैक्टली क्योंकि जब आप वो करोगे ना तो आपको पता चलेगा, देन यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन कि अकेले रहना वाकई में बुरा होता है या ये मुझे बताया जा रहा है. अगेन इट कम्स टू कंडीशनिंग. जैसे जैसे आपकी कंडीशनिंग वॉश होती जाती है, उसके लिए आप ये सारे टूल्स यूज कर सकते हो. और जैसे जैसे वो वॉश होती जाएगी, आपको अपना सच पता चलने लग जाएगा कि आपका सच क्या है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, आपके लिए डिप्रेसिंग क्या है, और आपके लिए फुलफिलिंग क्या है. तो एक और चीज जो मुझे इससे याद आ रही है, जो मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं हमेशा सबसे इस बारे में बात करती हूँ कि हमारे समाज में ना एक सांचा बनाया हुआ है, अ, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, कि एक लड़के को ऐसा होना चाहिए और एक लड़की को ऐसा होना चाहिए. तो मैं अपनी मम्मी से बहुत लड़ती थी क्योंकि ये लोग मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर रहे थे, जब मेरी एज हो गई. तो वो लड़के कैसे होते थे कि वो मेरी पड़ोसन के लिए भी वैसा ही लड़का देखा जाएगा, मेरी कजिन के लिए भी वैसा ही लड़का देखा जाएगा, मेरे लिए भी वैसा ही लड़का देखा जाएगा. और वो लड़का क्या था, बेयर मिनिमम, कि उसके पास एक जॉब होनी चाहिए, वो इंजीनियर टाइप या सीए टाइप कुछ होना चाहिए, एक जॉब होनी चाहिए, माँ बाप होने चाहिए, प्रेफरेबली खुद का लोन पे एक घर वर होना चाहिए, एक बहन जिसकी शादी हो चुकी हो तो अच्छा है. सो एक सांचा था, और आप उस सांचे के हिसाब से ही बचपन से, लाइक आई सेड, मेरी तो ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो सांचा मेरी मम्मी के दिमाग में फिट था, और बचपन से वो मुझे एक ऐसी लड़की बना रही थी जो उस सांचे को कॉम्प्लीमेंट करे, राइट? तो मैं भी एक सांचे में ढल गई, तो एक लड़की को सांचे में डाल के लड़के हैं, बट हम लोग सब इतने डिफरेंट है. जब भगवान ने इतना अलग हमें बनाया है, तो आप क्यों हमें स्टीरियोटाइप कर रहे हो, और आप ये मान के चल रहे हो कि हर लड़की के लिए फुलफिलिंग यही होगा जब वो एक अच्छी बहू बनेगी, एक अच्छी बीवी बनेगी, अच्छी माँ बनेगी, वही फुलफिलिंग है. जबकि आप देखो, there are so many brilliant people around us who never got married and who have achieved so much in life, जिनको हम घर पे टीवी पर बैठ के देखते हैं और वाहवाही करते हैं. लेकिन अगर यही आपके घर का कोई कर रहा हो, तो आप कहोगे ऐसे कैसे, ये तो करना ही पड़ता है बेटा, ये तो सभी करते हैं. तो वो जो सांचा है ना, उससे अब हम लोग बाहर निकलने लगे हैं, उसे हम तोड़ने लगे हैं, विच इज मच नीडेड. जिसे बहुत बुरा माना जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि again coming back to my point कि if you ask yourself who you are, you will get so many answers and you will get a direction. वरना इतने लोग हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उसी सांचे में बड़े होते हैं, उसी सांचे में वो चले जाते हैं, उन्हें कभी पता नहीं चलता who they are. They might live more fulfilling lives. उनकी लाइफ में हो सकता है challenges कम हो, लेकिन I don't think it is a very rewarding life. आई एम श्योर कि उनके डेथ बेड पे ये ख्याल जरूर उनको आता होगा कि व्हाट डिड आई अचीव, और व्हाट really was it a life worth living, etc. So ना my mom would always be very specific कि बाहर नहीं जाना है इंदौर से, ना पढ़ने ना जॉब करने, बाहर नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि बाहर जाओगे तो शादी कैसे होगी, लोग बोलेंगे कि ये तो लड़की बाहर रहती थी, ये तो आजादी, इसको वो है, ये तो घर के साथ मैनेज नहीं कर पाएगी, तो इंदौर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है?
तो मैं हमेशा ये सोचती थी, जो कि अभी ये एग्जाम्पल मुझे बड़ा फनी लग रहा है, यू विल नो व्हाई। मैं सोचती थी कि यार ऐश्वर्या राय की मम्मी ने अगर ये सोचा होता कि कि मेरी बेटी अगर स्विमवेयर पहन के रैंप बाहर वॉक चली करेगी, जाएगी। तो आज उसकी शादी बच्चन फैमिली में ना हुई होती। नाउ यू नो द जोक, राइट? तो मुझे लगता था कि यार आप अपने बच्चों को उस तरह पालो, just let them grow, let them live, let them become who they are meant to become. Then उसके हिसाब से लड़का ढूंढो ना, उसके हिसाब से लड़की ढूंढो। आप तो ऐसे पाल रहे हो, लाइक आई सेड, कि बचपन में ही पता है कि लड़का तो यही है, और उसके हिसाब से वो बाल विवाह होता था, तो ऐसा होता ना कि लड़का पता चल चुका, अब इसके हिसाब से ढाल दो। तो वही मेरे साथ होता था। ऑल्दो अब नाउ व्हेन आई लुक एट ऐश्वर्याज लाइफ, आई एम लाइक ओके, माय एग्जांपल वाज pathetic, but you get the point, right? Yeah, You yeah. get Yeah, yeah. what I'm saying. So I feel like you should let individuals be individuals. Marriage will eventually happen or not, but it doesn't define who you are as a person, Hmm. as opposed to what we have been made to believe, especially women. I felt like a failure for such a long time because my marriage didn't work out. Yes, तो समाज की नजरों में, but अंदर से भी, क्योंकि मुझे लगा कि the one thing that I was being trained for, the one thing that I wanted to do the most in life, I couldn't do that, and I couldn't accept that. मैंने अपने आप को बहुत ब्लेम किया, मैंने अपने आप को बहुत कोसा, and I think वो 3 साल जो मैं लगी रही ना इतना ज्यादा, वो इसलिए भी था क्योंकि I was punishing myself. I think in a way that you have to make it work. Yeah. I was becoming my own sass and my own mother. I was like, you know what? ऐसा हो ही नहीं सकता. You have to do it. You are a failure. This voice in my head, it took me such a long time to silence that voice. And finally, when I did it, I felt a relief. Like, you can see that, I think, on my face now, that relief. And I remember that during that time, वो चीज मेरी शक्ल पे भी दिखती थी. I had stopped living. मैं ऑफिस चली जाती थी, मुंह उठा के, बालों में तेल लगाया, आईब्रोज नहीं किए, अपर लिप्स नहीं बनाए हैं, काजल नहीं लगाया, बस उठ के चले गए हैं, बिकॉज देयर वाज, जीने का कोई पर्पस ही नहीं दिख रहा था. तो उस एक्सटेंट तक आप जो है गिव अप कर देते हो अपनी लाइफ पे, जस्ट बिकॉज योर मैरिज डिडंट वर्क आउट. Yeah. एंड the biggest, I think, epiphany for me was when I realized that there is so much more to my life. मुझे इतना अंधेरे में रखा गया है जीवन भर. अब मुझे पता चल रहा है कि देर इज सो मच मोर टू माई लाइफ, एंड आई रिग्रेट ऑल्सो कि मैं उन चीजों पे फोकस पहले कर सकती थी, बट ठीक है, अब कर रही हूँ. तो इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी. व्हेन आई लुक बैक, आई फील लाइक आई वुडंट चेंज एनीथिंग एट ऑल. बट एनीवे, हम बहुत डाइग्रेस कर रहे हैं, तो लेट्स कम Yes. बैक टू Yes. आवर टॉपिक. So, I think this is the Last last question. question that we would want to, and हम लोग beautifully ऐसे circle कर चुके हैं पूरी उसमें, like you just said right now. Last question to you was going to be that can you still find your happily whatever after a divorce? Yeah, So that's you my just, favorite question, I think. But you just answered everything. yeah, in you the just correct- answered the question, but if you want Yeah, to say something more, yeah, you yeah, can. definitely. So, first I want to say about, generally, whether I feel that, there can be a happily ever after. तो मुझे लगता है इस दुनिया में शायद ही ऐसा कुछ है जिसके बाद में देयर कांट बी अ हैप्पीली आफ्टर, राइट? बट शादी टूटने के बाद में मैंने दो पैटर्न्स देखे लोगों में. एक तो ये है कि शादी टूट गई है फॉर सम रीजन, डिवोर्स की प्रोसेस चल रही, सब चल रही है, ऑलरेडी आप दूसरी लड़की देखने या दूसरे लड़के देखने में लग गए हो, राइट? विदाउट रियली रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग. ठीक है भाई, ये तो अच्छी नहीं थी, या ये अच्छा नहीं था, दूसरी ढूंढेंगे, दूसरी करेंगे. तो उनके लिए मुझे लगता है कि नथिंग्स गोना चेंज. तो वो हैप्पीली एवर आफ्टर शायद ना मिले उन्हें, क्योंकि अंटिल दे एड्रेस द इश्यूज. कुछ लोग मैंने देखे हैं कि और मुझे ऐसा लगता है शादी दैट शोकी दैट शादी इज अ एडवेंचर स्पोर्ट, राइट? आई मीन, आई थिंक देयर शुड बी मॉक ड्रिल्स फॉर इट. क्योंकि आई कैन गारंटी यू, अगर मॉक ड्रिल्स होंगे ना, तो 50% ऑफ द पीपल आर जस्ट गोइंग टू ऑप्ट आउट ऑफ एवर गेटिंग मैरिड, राइट? तो जिनकी एक शादी हो चुकी थी, तो उनके लिए मॉक ड्रिल हो गई ना. तो उसके बाद में मुझे लगता है अगर वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने ऊपर वर्क करें, दे टेक देयर टाइम,
understand what went wrong, whatever happened. तो I think उनकी जो दूसरी शादी होगी, that would be so much better, and it can be a really good marriage. So उनका happily ever after वैसे हो सकता है. Now coming to me, I personally would say that the vision I have for my life now, the dreams and the goals that I have for my life now, I do not see marriage being a part of it, at least as of now. Maybe we can talk in season 3 and see where things are. Yeah, we can But- circle back in we can season circle 3. back in Yes, season 3 for absolutely. sure. तो शादी तो उसका पार्ट नहीं है अभी के लिए. Not being pessimistic, I just feel that the concept of marriage is very outdated. I think we have as a society grown so much, evolved so much, but शादी का concept कहीं ना कहीं वही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड तुझे याद होगा शोकी, जब हम कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो मैं कैसे ना हमेशा हर चीज खुद से डिजाइन करती थी अपनी, है ना. मुझे लगता था कि सूट है तो उसमें कुछ पर्सनल टच देना है, कुछ डिजाइन करना है, हर चीज में कुछ डिजाइन करती थी ना. तो मुझे हमेशा डिजाइनर चीजें पसंद है, जो जिसमें मेरा खुद का दिमाग लगाओ. तो आई फील दैट मेरी शादी कैसी होगी वो भी ना मुझे डिसाइड करना है. अगेन वो सांचे वाली शादी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को कहती हूँ ना कि यार आई एम नॉट अगेंस्ट कंपेनियनशिप, बट मुझे शादी नहीं करनी. तो देयर लाइक कि ये क्या बात हुई, जब कंपेनियनशिप के अगेंस्ट नहीं हो तो शादी के अगेंस्ट क्यों? क्योंकि कंपेनियनशिप कैन कम इन एनी फॉर्म, यू Yeah. नो, इट्स Yeah. फ्लूइड. शादी को अगेन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसी ही होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए. तो मुझे मेरी डिजाइन्ड शादी अगर मिले, कोई इस तरह का मेरी तरह का पागल क्रेजी आदमी मुझे मिल जाए at the right time, and you know we are lucky to find each other at the right place, I think that I won't mind that idea. But I don't think that we are there yet as a society. So I am not against the idea of a companionship. And this beautiful scene from this show is coming to my mind. Have you seen Grace and Frankie? It's one of my most favorite shows. So उसमें जो Grace, the protagonist, उसकी बेटी होती है, she's against marriages. She's like कुछ भी हो जाए, ये शादी वादी के मुझे चक्कर में पड़ना नहीं है. But she finds an amazing person, they fall in love, and that guy is like, I want to get married because that's what I've been dreaming of. She's like, I can't give you marriage, so they break up. Then she realizes that she can't live without him. So then she proposes to him, and she gets down on one knee, and she asks him, would you be engaged to me forever? Because she said that, you know what, I have come a long way from even from hating marriages and companionship to a place where I love you so much that I see both of us being together, but I don't want to get into a marriage. So this is my idea of giving you that social security, that acceptance and everything, and that commitment. So this is my way. Are you okay with that? And he says yes. And then till the end of the show, that's their relationship status. They don't even try to change it to marriage or something. And I found that so beautiful, because that's how it should be. You get to decide what marriage is for you. You get to decide how much of your, how you want to shape your relationship, whether people telling you how it should be. It should work for both of you. I think that is something beautiful, which I might still, look. And finally, coming to your question, the happily ever after, like I said, that there is a happily after, but the ever, I think you put the ever Whatever. in happily We after. put whatever. We put whatever. I mean, one puts ever, like No, I'm punning on the same thing, that Yes, yes, it's got it, whatever got it, you got put is Whatever what you- is going to happen. Exactly, Yeah. absolutely. तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में एवर मैं ही डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं ही एक कांस्टेंट हूँ अपनी जिंदगी Yeah, में. yeah. हमारी और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि हर कोई तुम्हें धोखा ही दे देगा, लेकिन गारंटी नहीं है किसी चीज की ना. आई हैव सीन कपल्स वेयर द लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग, बट वन ऑफ देम डाइज. So you're left on your own, or Yeah. even in your old age, one dies before the other. तो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ में सिर्फ आप ही हो. और अगर आप अपने आप से खुश हो, अपने आप को खुश कर सकते हो internally, if you are happy, then I think you will put the ever in happily ever after, and I think that would be the biggest achievement of your life. Superb. I think So- she has left us with a beautiful thought. Yes, amazing thought. I think इस एपिसोड की शिक्षा बहुत ही सुंदर है. और वो पारुल नहीं बहुत दिए शिक्षा है ना, मुझे तो हमारे लग रहा है बहुत प्रीची हो गया ये सब कुछ, नहीं?
नहीं, नहीं. नहीं, Actually, it's been a very beautiful way to tell people about that life doesn't end yeah, at divorce. yeah, Whether it is about being in a relationship or being single, the fact that you can fall in love with yourself yeah. is also a kind of companionship, right? Like you just said. Absolutely. So, सो आई थिंक अभी जब हम बात कर रहे थे तो मेरे मन में और एक माइंड में एक बहुत ब्रिलियंट थॉट आया दैट दो डाइवोर्स happens between two people, but the second part of divorce is that ki you fall in love with yourself. That is the learning that I would possibly want to leave people with, because divorce का एक stigma जो बोलते हैं ना कि आप एक guilt में जाते हो, shame में जाते हो and everything. I think once you divorce, you should start falling in love with yourself, and that should be the way forward for you in your life. Yeah, so a lot of my friends would ask me, why are you not? Because like I said, I had not moved on for a really long time, right? Now I'm at a place where I'm like, out of it. But for a really long time, my friends would really push me to start dating. Okay, like relatives were forcing ki shadi kar lo. Friends were forcing ki, Parul, you really need to, get laid. Parul, really need to get into a relationship and everything. And I used to tell them this thing that I'm already in a relationship. And they're like, oh, wow, who's he? And I used to tell them that it's me, because right now, the way I am figuring out stuff about myself, it's like वो एक रिलेशनशिप का जो हनीमून फेज होता है ना, जब हर दिन आपको एक नई बात पता चलती है सामने वाले के बारे में और आपको उससे और थोड़ा सा प्यार हो जाता है, तो वो मेरे साथ चल रहा था, क्योंकि मैं जितना अपने ऊपर वर्क कर रही थी, मुझे समझ में आ रहा था, लाइक देयर वर सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट मी दैट आई वाज फाइंडिंग आउट ना, तो मुझे लगा था, ओह, so is this what we are doing now? Is this who Parul is now? Wow, that's amazing. I love it. So I was like, इस स्टेज पे अगर मैं किसी और इंसान को लेकर आती हूँ ना अपने जीवन में, तो he'll be like a third wheel. So that will be very unfair. So I'm happily in a relationship with myself right now, and whenever I decide to break up, then I'll think about someone else. So yeah. तो तो करण, yes, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आई थिंक शिक्षा तो मैं नहीं दूंगा, बट आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल एपिसोड एट एन ओवरऑल एक्सेस. शिक्षा पारुल ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, बहुत Yes. सारी शिक्षाएं उसने दे दी है. And I think it's a brilliant way. Like, I didn't think this episode will go in this direction, but I wanted a female perspective of divorce. But what I got was a overall perspective of divorce, after which the happily whatever after will be falling in love with yourself. Yes, Thank you so much, Parul, for gracing us with your presence yes, and time, and opening up so nicely yeah, for us. It's not easy to talk about such things, but you flowed through it so beautifully and gave us so many words, pearls of wisdom, as yeah. they call. So, thank you so much. And I think our audience is also going to love you as much as we loved you. Yeah. We I still hope. love you. Thank you so much, Shoki. I think I was very nervous. I would be honest. I was I was shivering a little bit before we started, Arre. because I wasn't sure how, I'll be able to put things across. But I'm also, I think, pleasantly surprised that I could go through this without crying, without, really getting into the whole, like I said, not getting triggered and everything. That also tells me how much that work that I was doing on myself has paid off. So, Yes. Yeah. yeah, I'm actually feeling very, very good, because it is proof for me that yes, I have come a long way. So thank you for giving me this opportunity to realize that, and also to share my story. I really hope that someone out there, gets benefited, or just, अगर उस किसी को एक बार ये भी लगा ना कि यार बस यही इसी की मुझे जरूरत थी, this is what I needed, I think I would just feel so happy about it. And I think यही purpose भी है moving forward, that if I can help other people who are going through similar things, if they can get even a little bit support from me, I think that all of this pain would be, justified, kind of. I would know why it happened, what happened.
So I think we are ending up with the same thought because that's our podcast journey. There is no benefit that we're trying. We're just trying to touch the souls as much as we can with our story, with Yeah, bringing even people. if exactly what you said, that even if one person can benefit from all of these stories, tips, and tales, and raite that we keep telling people, even if one of the person says ki, oh, I'm not alone, Yes, that's our purpose purpose, achieved. and that we have done in season 1, and season 2 is going on. Yeah. So yes, that's And I working think on. Yes. this episode is also a reaffirmation Yes. that she said the exact same words that we did Yeah. on our podcast. So yes, guys, So thank you so yay much. to us. Yeah. I think. yeah to us, yes, Yes. totally. So yes, guys, thank you so much for listening to us. That's it from our side. This was a brilliant episode, and as you guys know, that we love you so much from bottom of our hearts. Thank you for giving your time to us. And as Shoki will always say, the closing remarks. Thank you for listening to us. We are on all social media platforms under the name @happily whatever after pod. फिर एक चीज भूल गई है ये. Like, यही- share and subscribe. Don't forget to hit the bell icon. एक और चीज भूली हो शायद तुम. So guys, we are also available on YouTube right now. We have launched our Yes. YouTube channel. So please do like, share and subscribe. There is a link available for our YouTube channel. Please click it and watch the season 1 videos. And we will see you next week. Bye bye. Thank you so much.